السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک نئی صبح کی سوچ میں. میں ہوں منیب حامد اور میں ہوں سونیا. رائز اینڈ شائن. عید آنے والی ہے. یہ ابھی تک اپنی جو ہے تیاریاں کر رہی ہیں، بلکہ ہفتہ اتوار انہوں نے جا کے 2 دن جو ہیں ایک گوشت کی دکان پہ وہاں پہ انٹرنشپ کی ہے کہ میں جو ہے گوشت کیسے کاٹ سکتی ہوں. میں نے جو ہے نا، اور میں نے کسائیوں کا گروپ بھی تیار کر لیا اپنے واٹس ایپ گروپ جوائن کیا. انہوں نے کسائی گروپ، ازلو کسائی گروپ وہاں پہ جوائن کیا ہے. تو اگر آپ نے بھی اگر عید کے دن گروپ میں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایڈوانس بکنگ جاری ہے سونیا کی. اور اگر آپ چاہتے ہیں سونیا کسائی کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بکرا بیل سونیا ذبح کریں، اسٹنٹ مارنا ضروری ہوتا ہے، آ کے وہ ذبح کریں، اس کا گوشت بنائیں، تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر ابھی آپ نے بکنگ کروائی تو 50% آف، up to 50% آف آن سونیا کسائی. یہ ہے منڈے کا دن ہے اور ہمیشہ ہم لوگ جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جو انرجی آ جاتی ہے، وہ ہوائیں جو ہیں بڑی اس میں فن آ جاتا ہے، ایلیمنٹ ہو جاتا ہے. اور ہر صبح میں سمجھتا ہوں کہ سب کا جو ایسے ہی ہونا چاہیے. بیسکلی ہماری جو موٹیویشن ہے نا وہ آپ لوگوں سے ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ گفتگو کرنی ہے، آپ کو ذرا چوکنا کرنا ہے، آپ کی جو منڈے کی لیزینس ہے، جو منڈے بلوز ہوتا ہے وہ دور کرنا ہے. اس کی موٹیویشن ہمیں آ جاتی ہے. ایکچولی ہم اپنی ہاٹ سیٹ سے بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایکسٹرا انرجی آ جاتی ہے. اس پہ چولہا لگایا ہوئے لوگ اتنی ہاٹ سیٹ ہے. بہرحال منڈے کا دن ہے، ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا آغاز ہے. بجٹ پیش ہوا ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی گناہ ہے. اس کے علاوہ آپ سیڈ ہو سکتے ہیں، دکھی ہو سکتے ہیں کیونکہ 250 تک پہنچ چکا ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آغاز کے اندر میں ایک چیز جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے مل کے ایک اچھی قوم بننا ہے، ایک اچھی ریاست بننا ہے. وہ کیسے بن سکتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں تو کیا ہی خوب ہو، کیا ہی بات ہو کہ اگر آج کے دن ہم ایک جان بوجھ کے کوئی نیکی کریں. بالکل، اور ہم یہ بات آپ سے آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ کہتے ہیں تاکہ اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی ہے بات تو وہ سمجھ لیں. اور ضروری نہیں کہ نیکی کرنے کے لیے بہت سارے پیسے ریکوائرڈ ہوں یا بہت ساری انرجی ریکوائرڈ ہو. آپ صرف ایک مسکرا کے بھی کسی کو دیکھ لیں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کسی کی مدد کر سکیں آپ، کسی کو سڑک کراس کروا سکیں. یہاں تک کہ اگر کوئی گاڑی ہی جا رہی ہے اور آپ روک لیں راستہ، جس کو میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی گاڑی ہے جلدی میں ہے، اس نے ہیزرز آن کیے ہوئے ہیں، اگر وہ لائٹس دے رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جلدی میں، اگر آپ نے صرف اسی کو راستہ دے دیا تو یقین کیجیے یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ آپ نے ایک اچھائی کے لیے بالکل. اور سگنل پہ کھڑے ہوئے اگر آپ کے دائیں یا بائیں جانب کوئی پیاری لڑکی کھڑی ہے تو اس کو جھانک کے گاڑی میں سے دیکھنا یہ گناہ ہے. یہ حرکتیں نہ کیا کریں. یہ لوگ بہت کرتے ہیں نا، تو میں لڑکیوں کی تھوڑی سی سائڈ لیتا ہوں اس میں جو بڑا. اچھا جی، بہرحال آتے ہیں جی پروگرام کی ہیڈ لائنز کی جانب. اور آج کے لیے کون سا شو ہے جی؟ ہم لوگ کون سا شو کرتے ہیں؟ فل آن شو. دیکھتے ہیں کہ آج کے فل آن شو میں ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں. ریاست، سیاست، معیشت کے ایسے جنگل میں پھنس چکی ہے جہاں معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں. ایک طرف ملک میں مالی سال کا جو بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے، لیکن کیا یہ بجٹ حقیقی معنوں میں مؤثر ثابت ہو پائے گا یا نہیں، جانیں گے ہمارے ماہر معاشیات سے. جی، دنیا بھر میں بچوں کے بہتر اور خوشحال مستقبل کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی تک انفارچونیٹلی بچوں سے مزدوری کروانے کا رجحان ختم نہیں ہو پا رہا ہے. آج منایا جائے گا بچوں سے مزدوری کے خلاف عالمی دن، اور نوجوان نسل کے سر پر بال ختم ہو رہے ہیں. اس کا حل تلاش کرنا اب بہت ضروری ہو چکا ہے. اس کے لیے ایکسپرٹ رائے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی انتہائی خوش شکل اور خوش مزاج ڈاکٹر فاروق نوشین، جو میری بڑی اچھی دوست بھی ہیں اور پاکستان کی خواتین کر رہی ہیں ملک قوم کا نام روشن. ملاقات کروائیں گے آپ کی پاکستان کی انٹرنیشنل فٹ بال کھلاڑی سے. ہمارے پروڈیوسر صاحب ناراض ہو گئے ہیں آپ کی اتنے جو آپ نے اعلان کیے نا کہ نوجوانوں کے سروں سے بال ختم ہو رہے ہیں. کیسی بات ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. کوئی بات نہیں اویس بھائی، آپ کے سر پہ بال آئیں گے، ایک دن آئیں گے. ہم ڈاکٹر فاروق قاری ان سے آپ کا بھی علاج کروائیں گے. بالکل. اور تعلیم سب کے لیے، لیکن تعلیم کا بجٹ کم ترین رکھا گیا ہے. کیا کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے آج بات ہوگی بڑی ڈیٹیل میں پروگرام میں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. جی بالکل. سب سے پہلے جی گیسٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ میری دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں عزیز نشر صاحب، ماہر معاشیات ہیں، اور میری بائیں جانب احمد وحید صاحب، ماہر معاشیات ہیں. آپ دونوں کو گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ مارننگ اور ویلکم ٹو دی شو.
اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے نا میں اوور ویو لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بجٹ کے اوپر. جب بجٹ پیش ہوا تو اس کے بعد آپ نے اس کی انالیسس کی ہوں گے، تو آپ کی اس کے اوپر کیا انالیسس تھے؟ تمام سیاست، پارٹی بازی، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا قوم کو ایک نوید ہی سمجھے. اس بجٹ کے ذریعے جو ہے وہ بجٹ کا میسج یہ ہے کہ حالات بالکل نارمل ہیں، کوئی کرائسس نہیں ہے، کوئی معاشی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس انداز کی وہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی، کال آ گئی آپ کو. ایک نارمل بجٹ ہے جسے میں بابو بجٹ کہتا ہوں کہ بابو بیٹھے، انہوں نے فگر جو ہے رسم ہے، لا کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ سال کا جو ہے وہ بجٹ بنائیں گے. بجٹ ایک قانون ہے، اس قانون کے بنے بغیر نہ ٹیکس لگ سکتا ہے، نہ جو ہے اخراجات جو ہے مختلف محکمے کر سکتے ہیں. اس لیے اس قانون میں ہونا تو یہ چاہیے. دو اس کے جو ہے وہی صاحب بھی میرے ساتھ بیئر کریں گے. اس کا ایک تو قانونی پہلو ہے، دوسرا پھر اس میں سارے کے سارے سال بھر کی، بلکہ سال سے بھی آگے کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ترجیحات ہیں، کون سے ایسے کرائسس ہیں جنہیں ہمیں فوری طور پہ جو ہے ایڈریس کرنا ہے. لیکن اس ماہروں کی بڑی ساری ایکسپرٹس کی جو ٹیم ہے، اس نے میسج دیا ہے کہ حالات نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کوئی بجٹ میں کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو غیر معمولی ہو. اس لیے جو یوزول والا ہوتا ہے، کسی چیز میں 5% اضافہ کر دیں، کسی میں 2% کمی کر دیں، سب نارمل ہے. اس انداز کا ایک بجٹ آ گیا ہے، بابو بجٹ. جی بھیا، بابو بجٹ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ صبح صبح تو میرے خیال اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. اچھی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے، ایز فار ایز دا بجٹ از کنسرن، اس بجٹ میں وی آلریڈی نو دا سینٹیمنٹ واز کہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں آ سکتی، کیپنگ ان ویو کہ اٹس سو کالڈ اے کلیکشن بجٹ ایز ویل. اور ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے جو بجٹ آتا ہے اس میں اب آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ If nothing more I had to say, but a kind of a balanced budget in a way for particularly two sectors, جس میں ایگریکلچر ہے اور جس میں ایک آئی ٹی ہے. بٹ جیسے کہ ڈسکس کر رہے تھے، ایٹ اے گلانس اف آئی ٹاک اباؤٹ دا بجٹ، تو مینوفیکچرنگ سیکٹر ٹوٹلی بڑا اس کو اوور لک کر دیا گیا ہے. اور باقی مجھے ایک چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ وی ہیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس اسکول تھاٹ ہے جو پرانا ایک دقیانوسی نظام چلتا آ رہا ہے کہ بجٹ کی اسپیچ ہوتی ہے، اس میں سیاسی پہلے جلوہ نگار ہوتے ہیں سارے چیزیں. اور ہمیں نیبرنگ کنٹریز میں بھی ہے، وی شوڈ بی ویری مچ مشن اورینٹیڈ کہ ہم نے اپنے ملک کو لے کر کس طرف جانا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے بجٹ وچ یو کال اٹ کہ ایک ڈائریکشن، جیسے کہ مینشن کر رہے تھے، ڈائریکشن ہمیں دی جاتی ہے. بٹ ہماری اب خواہش جو ہے، اور جو کہ ملک کی حالات اور آج کل دنیا کے حالات واقعات کے مطابق، تو بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیں پراپرلی R&D کے مطابق ایچ اینڈ ایوری سیکٹر کو ڈیفائن کرنا چاہیے. ایگریکلچر کے اندر چھوٹ بھی دے دیے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کچھ سمجھ نہیں آتی. آج سے 3-4 مہینے پہلے ہمیں یہ سمجھ لگ رہی تھی کہ ویٹ کی کراپ بہت زیادہ شارٹ ہوگی. اللہ کا کرنا شکر الحمدللہ ایسا ہے کہ ویٹ کراپ اچھی ہو گئی ہے. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ 2.2 ملین ٹن زیادہ ہوگی. کچھ جو ایسی بیلٹس ہیں جو کہ ساؤتھ پنجاب کی ہیں جہاں پہ اٹس ویری فرٹائل لینڈ فار کاٹن، وہاں پہ بھی گنا اگ رہا ہے. تو ہمیں ان گائیڈڈ میزائل بنے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو منسٹریز کو دے ہیو ٹو ڈرل ڈاؤن ٹو ایوری اسپیکٹ آف لائف کہ ہماری ڈائریکشن کس طرف ہونی چاہیے. ٹیکسٹائل کی اس وقت 2.2 ملین کاٹن بیلز جو ہے وہ لیس ہیں. آئی مسٹ سے 3.2 کاٹن بیلز جو ہے وہ لیس ہیں. تو وہ اب اس کو ٹیکسٹائل سیکٹر کو امپورٹ کرنا پڑے گا. پھر اگین ایل سیز کا بھی برڈن ہے، پھر دوسری ساری چیزیں ہیں. سو اس چیز کو ہمیں چینج کر کے وی شوڈ کم آؤٹ ود اے ویری وائڈ سارٹ آف اے براڈ اسپیکٹرم ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیں پتہ لگے کہ ایگزیکٹلی
इस मुल्क की डायरेक्शन कहाँ है? चाहते क्या हो? डायरेक्शन को तो कुछ नहीं पता किसी को भी ऑनेस्टली। सर, तनख्वाहों में इजाफे भी कर दिए, टैक्स भी बढ़ा दिए, तो ये फॉर्मेलिटी की ज़रूरत की क्या थी, मतलब इजाफा करने की? ये मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, सियासत एक तरफ, लेकिन ये इलेक्शन ईयर का बजट है। इलेक्शन ईयर बजट में आपको कुछ इस अंदाज की खूबसूरती जो है वो डालनी होती है साथ। बिल्कुल सही कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि इस साल में जो है वो इस अंदाज की चीज़ें करनी जो हैं वो ज़रूरी हैं कि जिनसे लगे कि एक नॉर्मल सी सूरत हाल है और उसमें आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पूरी कौम को नज़र आ रहा है इन्फ्लेशन जो है हिस्ट्री में इतनी नहीं रही। हमारी ग्रोथ जो है वो जितनी कम हुई है पिछले 2-3 साल में जो है एक दफ़ा नेगेटिव हुई, फिर तकरीबन नेगेटिव के हम करीब हैं। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हुई है। इसी में अब आप देखें, टैक्स तो नहीं लगे, टैक्स लगे हैं अगेन 223 बिलियन, जिनसे कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वो किसी ने, शायर ने कोई एक मिसरा कहा था जो हर शेर का दूसरा मिसरा बन जाता है कि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई। ये जो है इसमें ये जितनी सारी एक्सरसाइज की गई है, ये मैं कह रहा हूँ एक रस्म पूरी की गई है। और इसमें मुझे ख़दशा ये है, एक तो वैसे ही इस करंट गवर्नमेंट जो है चंद महीने हैं, बल्कि 1.5 महीना है, लेकिन इस मुल्क ने तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ रहना है। आपको कोई इस अंदाज की चीज़ करनी चाहिए जो पूरे साल का आप प्लान दे के जाएँ। आप अपनी सिर्फ जो है वो वोट पॉलिटिक्स या इस तरह की पॉपुलैरिटी की खातिर नहीं, आपको बहुत दफ़ा जो है अपने घर में रहते हुए भी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। और मैं बिल्कुल जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूँगा लास्ट ईयर का बजट, उसमें किसी हद तक मैं भी इन्वॉल्व था। लास्ट ईयर के बजट में जो भी उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने डिफ़िकल्ट फ़ैसले लेने की राह हमवार की, डिफ़िकल्ट फ़ैसले लिए जिसके उन्हें सियासी नुकसानात उनकी पार्टी को बिल्कुल हुए या हो सकते थे। लेकिन ये कि कम से कम आप अपने जिस तरह घर में बैठ के दुकान पे अपने बिज़नेस में मुश्किल फ़ैसले करते हैं, उस तरह ये मुश्किल फ़ैसलों का वक्त था। मैं उसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं, तनख्वाहें थोड़ी सी बढ़ा दी गई और इन्फ्लेशन उससे बहुत ज़्यादा उन तनख्वाहों के बढ़ाने से जो है वो कहते हैं ना फ़ारसी में अश्कशोई कि आंसू पूछे नहीं जा सकते। दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है, तो वो अश्कशोई से ज़्यादा आगे नहीं है। क्या नहीं है जो बाकी बजट्स की तरह नहीं है। इसमें भी आपने देखा होगा कि ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ड्यूटी जो है 1% कर दी गई, बाकी चीज़ें। उससे क्या होगा? उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सारा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो ये कि हम मुख्तलिफ तबकात को, मुख्तलिफ बिजनेसेस को, मुख्तलिफ सेक्टर को खुश करने के लिए या किसी को रगड़ा लगाने के लिए हम अपने बजट में उसी अंदाज से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये ऑटो सेक्टर एक ऐसा है जो मैं समझता हूँ एक वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है सोसाइटी की जो होने की ज़रूरत है। बेइंतहा कारें इंपोर्ट होती हैं, बनती भी हैं, तो उनमें से जो है 80% उनके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। कल को उन्हें चलाने के लिए फ्यूल इंपोर्ट होता है और सड़कों पे इतना सारा रश, पार्किंग लॉट्स में इतना सारा रश। इस बजट में दो मैं समझता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट सारी इंक्लूजन होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। एक तो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक रिलायबल सिस्टम कायम करने की बुनियाद रखी जानी चाहिए थी। एक बस, आप ट्रेन को छोड़ दें, एक बस के जो है वो सड़क पे आने की वजह से 30 गाड़ियाँ ऑफ रोड हो जाती हैं। बिल्कुल। उतना पोल्यूशन कम होगी, उतनी आपकी कंजम्पशन कम होगी और प्लस
सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात जो हैं उनके लोग मिल बैठ के कहीं एक जगह जा रहे सर, होंगे। वैसे कहा जा रहा था और सुनने में भी आ रहा था कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत अच्छा बजट रखा जा रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी और आवाम जानना चाहती है कि हकीकतन किसकी फलाह व बहबूद के लिए इतना अच्छा बजट रखा गया है? जो गाड़ियाँ ले सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, मैं वकील कुछ हूँ। स्पेसिफिक लोग ही है ना, इंडस्ट्रीज इसका नहीं बना मतलब सकते है इस ये। टाइम पे। इंडस्ट्री तो कोई जो वैसे मैं नहीं बना वकील हूँ। वकालत में ना एक बहुत अहम चीज़ होती है कि ला के शुरू में डेफिनेशन क्या है, तो अवाम की डेफिनेशन क्या है, ये बात तो है। वो अब आपने कोई और की होगी, उन्होंने कोई और की होगी। उनकी डेफिनेशन मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने कहा ना कि आम आवाम, ठीक है, अब आम Mango आवाम में people. सिर्फ एलीट ही रह गए ना, क्योंकि इनकी एक्सपर्ट टीम की वजह से जो जो ग्राउंड पे थी आवाम वो तो बेचारी कब्रों में जाती जा रही है, तो पीछे से सिर्फ आम आवाम ही रह जाएगी जो कि आम खाती हैं, अनवर अटोर हैं, जो बड़े ज़बरदस्त हैं, यू नो कैसा है ना। तो तालीम की क्या ज़रूरत है मुल्क में? देखिए, तालीम स्कूल कॉलेजेस बंद कर देते हैं, वो भी जो बजट आएगा वो अपनी इंपोर्टेड गाड़ियाँ मंगवा लें आप लोग। तालीम की क्या ज़रूरत है? तालीम के लिए तो वैसे ही कुछ सबसे कम बजट जो है वो तालीम के लिए ही क्यों सर? महसूस किया अहमद गया भाई, तालीम की देखिए, ज़रूरत है मुल्क में? नहीं, बिल्कुल लाजमी होनी चाहिए। अच्छा। आई मीन इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं आगे। यार। आई मीन आज तक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन इससे आगे वे फॉरवर्ड विदाउट एजुकेशन वी कांट डू नथिंग। एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों के लिए ही Health is more सबसे important मिनिमम as well. बजट रखा गया है, और इन दोनों के बगैर मेरा ख्याल है ज़रा नामुमकिन सी बात है। पाकिस्तान की असल में ना आवाम पर यकीन है कि सर में दर्द होता है तो खुद पैराडोल ले लेते हैं, अस्पताल की क्या ज़रूरत? डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स खुद हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो हर इंसान और बन कोई चुका भी है। मसाइल आप उनके पास लेके जाए, मुझे ये मसला है, वो उसका हल देंगे। तालीम की क्या ज़रूरत जब वो खुद बंदा साइंसदान है। स्ट्रीट स्कूल तो चल ही रहे हैं, वैसे भी क्या ज़रूरत है? नहीं, बट Next level. हमें इस पे लाजमी जो है ना अब आगे वे फॉरवर्ड को इस टाइम पे बिफोर इट इज़ टू लेट वी मस्ट डिसाइड आवर डायरेक्शन कि हमने करना क्या है। देखें इस वक्त अभी नेबरिंग कंट्री में देख लें कि एक टन्योर के अंदर एक साहब के टन्योर के अंदर ड्रामेटिकली चेंज आ गया है। नाउ दे थिंक दे हैव टू कम एज एन इमर्जिंग पावर, और हम नेबरिंग कंट्री के साथ हैं बिल्कुल, और उसमें अभी यही नहीं, हमें डायरेक्शन ही नहीं गाइडेड कि हमने करना क्या है। अब इस वक्त जितने भी आउटलुक्स देखें वो सारे नेगेटिव हैं, और अगर पर्टिकुलरली अगर कारोबार की बात करूं तो द स्काई रॉकेट हाई काइबो रेट्स आर स्टैंडिंग, और इन प्रिवेलिंग सिचुएशंस के अंदर तो एग्जिस्टिंग कारोबार तो वैसे ही ये सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है कारोबार करने की, बेहतर है कि पैसे उठा के बैंक में रख देते हैं, रिस्क फ्री आपको वैसे इंटरेस्ट मिल जाता है। बल्कि इस टाइम पे तो हमारा, मैं आपकी वसासत से एक तो ये भी करूँ, इट्स अ राइट टाइम कि हम अपना इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस कर दें, जो कि हाई कोर्ट ने भी अपनी डेट दी हुई है। तो दिस इज़ द टाइम कि रादर देन ये चैलेंज है कि रादर देन ये कि हम पैसे सारे उठा के बैंक में ले जाएं और वो सूद एक लोग खाने लग जाएं, तो इट्स गुड आइडिया कि हम इस टाइम पे चेंज कर दें। बाकी एज़ फार एज़ देखें, हमें हर सेक्टर के अंदर R&D लाजमी करनी है। R&D आएगी कहाँ से? तालीम से। एजुकेशन सेक्टर, उसके एजुकेशन सेक्टर के अंदर इस वक्त इतना इन्फ्लक्स इंजेक्ट करने की ज़रूरत है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, एक जो हल है ना, मैं तो समझता हूँ, चाहे मिफ्ता हो, चाहे आपके जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, जो भी गवर्नमेंट आए, जब तक आप IMF के अलावा अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं बनाएंगे, जब तक मुल्क में आमदनी के ज़राए नहीं पैदा होंगे, जब तक, जैसे सोनिया कहते हैं, कशकोल इकॉनमी आपकी होगी, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही आप लोगों को बताते हैं कि बेटा ये करना है आपने। मैं ये समझता हूँ कि IMF एक डॉक्टर है। जब आप बीमारी के उस हालत में चले जाएं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो ठीक है, जाना चाहिए। लेकिन ये कि उसूलन हमें अपनी जो है वो नेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी रखनी चाहिए कि डॉक्टर के पास, IMF नामी डॉक्टर के पास आपको कम से कम जाना पड़े। अब हो क्या, IMF का जो है मैंडेट है वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी मदद करता है। आपकी इंपोर्ट जब ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगी, वही पैसे जो इंपोर्ट को जो फाइनेंस करने वाला डॉलर है वो आपकी एक्सपोर्ट से जो है नहीं हो रहा, तो उस वक्त फिर सारा का सारा ये होगा और पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेके बैठ जाएगा। हमारी बिल्कुल सही कहा कि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त हमारे अपने हमसाये में दुनिया में जो मैं समझता हूँ फास्टेस्ट जो
चेंज है, इकोनॉमिक चेंज है, वो नंबर 1 चाइना में है, नंबर 2 इंडिया में है। उन दोनों के पीछे जो है नॉलेज इकोनॉमी है और उसी नॉलेज इकोनॉमी की बुनियाद पे आज दुनिया के टॉप 100 कॉरपोरेशन के जो है वो 20 के करीब इंडियन जो है वो सीईओ हैं। हम ये बेसिकली, और वो अगर बाकी तमाम चीज़ें छोड़ दें, तमाम इंसानों में अल्लाह ताला ने 19-20 के फ़र्क के साथ ये सारी कैपेसिटी रखी होती है। असल मामला ये होता है आप उसे ग्रूम कैसे कर रहे हैं, ट्रेन कैसे कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, उसे रिसोर्सेज किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे ये सारी चीज़ जो है वो तरक्की करना चाहते हैं ना, इसलिए लोग तरक्की करना चाहते हैं। तरक्की हम भी करना चाहते हैं। तरक्की हर कोई हमने करना तरक्की हमें तरक्की करना नहीं चाहते। अगर तरक्की करना चाहते होते तो ये बजट ऐसा नहीं आता ना जिस तरह से पेश किया गया। ये आपकी बात से मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि ये बजट ऐसा नहीं आता। ये मैं समझता हूँ, खैर एक हम ये कहते हैं कि इसमें तालीम का बजट बहुत कम है। तालीम इस वक्त सूबाई सब्जेक्ट है, तो तालीम का यहाँ बजट नहीं, बाकी सारे को मिला के तो फिर सही होगा इंडिकेटर देखना। लेकिन इवन देन ये बहुत थोड़ा है, पूरे नेशन में देखिएगा बजट जो तालीम के लिए बहुत थोड़ा है। मैं ये बाकी तमाम चीज़ें छोड़ के हमें 5 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी लगा देनी चाहिए। हमें वार फुटिंग पे जाके तो तालीम को प्रमोट करना चाहिए। श्रीलंका के एक प्राइम मिनिस्टर होते थे बंदारनाइके के, बाद में उनकी बेटी भी बनी। उन्होंने वो जब आए अर्ली 70, 71, 72 में वो पीएम बने, तो उन्होंने यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के तमाम स्टूडेंट्स को गांवों में भेज दिया, जाएं जाके लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें। इसी तरह जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स थे ये वो, इन सबको जाएं जाके लोगों को हाइजीन और बाकी। इस वक्त पूरे साउथ एशिया में श्रीलंका की लिटरेसी और श्रीलंका के हेल्थ इंडिकेटर्स आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को दुनिया कोट करती है। हमारे इलाके में हमने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी। उसकी मेन वजह क्या है? और उसी में आपने देखे ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसी हुई, मसलन कभी किसी ने सोचा नहीं था जो है ये ख्वातीन लड़कियां जो हैं ये एज लेबर एक्सपोर्ट की जाएगी। उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्हें होम इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा पैरामेडिक्स, मिडवाइफरी, ये वाली चीज़ें सिखाई, और पूरे ये मिडल ईस्ट में हमारे यहाँ भी जो है वो बच्चियाँ आती रहीं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट है जिसके लिए आपके अंदर सब कुछ है, आपने वो सारी चीज़ को पॉलिश कर दी। हमारे यहाँ इस अंदाज की कोई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कोई चीज़ नहीं। और बल्कि एक मैं कहना चाहूँगा, मेरे दिल के करीब तरीन जो एक सब्जेक्ट है, हमने अपनी एजुकेशन को बिजनेस बना दिया। That's very true. ऐसे ही हम एजुकेशन जो है, जो कौम एजुकेशन को और प्राइमरी हेल्थ को, प्राइमरी एजुकेशन को, प्राइमरी हेल्थ को बिजनेस बना देगी, उसकी डेवलपमेंट के मुतालिक बहुत ज़्यादा सारा जो है पुरुमीद होना मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने किसी साहिबा से पूछा कि आपका बच्चा कौन से होटल में जाता है, कहती हैं क्या मतलब? मैंने कहा वो आई मीन स्कूल। ये बिजनेस ही हो गया है ना। आप मतलब जिस तरह 5 स्टार होटल्स हैं, ऐसे ही 5 स्टार स्कूल्स भी हो गए। तो उसमें तरबियत के ऊपर, तालीम के ऊपर नहीं होता है, वो सिर्फ डिग्रीज और ऊपरी चीज़ें पढ़ा देते हैं। बेसिक्स तो है ही नहीं हमारे यहाँ, ना एथिक्स हैं, ना मैनर्स हैं, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। अनफॉर्चुनेटली यही हाल हमें वैसे गुलामी सूट भी करती है ना। तरक्की पा गया पाकिस्तान तो मसला हो जाएगा ना बहुत सारे लोगों को। IMF के सर आपने कहा ना IMF के पास पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान भी वही मरीज है ना पाकिस्तानी, वो IMF को भी जाके बता रहा होता है कि मुझे ना ये मसला है। उससे नहीं सुन रहा होता, वो अपनी बता रहा होता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को IMF डॉक्टर वो ठीक वगैरह कर भी नहीं सकता। पाकिस्तान को ना कोई अच्छा हकीम चाहिए जिसको जो आगे ठीक करे। भाई इस वक्त जो है अब देखें महंगाई, लेट्स कम टू द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन जो मुझे दिखता है वो ये है कि हम जो अंकल IMF है इनसे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। जान छुड़ाएंगे तो ही हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फोकस कर सकते हैं। हम अपनी जो आमदनी है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब सोल्यूशन क्या है? ये कशकोल इकोनॉमी से एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। वैसे इसमें थोड़ा सा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ये भी बताएं कि क्या वाकई IMF से जान छुड़ाना मुमकिन है? ये भी चीज़
देखिए, नो डाउट कि जब भी हम IMF में आए, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी 24th ये 24th जब से काका पैदा हुए ना, अब उसी डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर भी कहते हैं कि मरीज से एक दफ़ा देख देख के ना तंग आ जाते हैं कि यार बस जान छोड़ दे भाई, अब खुद ठीक हो जाओ। देखिए, जब तक हम IMF की कंडीशन के अंदर रहेंगे, इस पैकेज के अंदर, इस सिस्टम के अंदर रहेंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड किस्म की आपकी रहेगी, ग्रोथ नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती। जिंदा रहेंगे। हैविंग नहीं सेड दिस कि आपको एक चीज़ में बड़ी, योर नेशन, आवर नेशन इज़ वेरी वाइब्रेंट, वेरी रिजिलियंट, एंड दो इट इज़ हेविली, आई मस्ट से लॉन्च करना चाहिए, क्यों नहीं, इनके पास अच्छा खासा पैसा है। जी। अब इसको निकालना कैसे है, दैट इज़ द टैलेंट विच नीड्स टू बी टच बेस्ड के मिनिस्टर्स कैसे करते हैं। हम होपिंग कि अभी तो हमारे तो बिजनेस कम्युनिटी में ये भी सेंटिमेंट्स हैं कि 30th जून इज़ द लास्ट कट ऑफ डेट फॉर IMF नेगोशिएशन के, हमें शायद कुछ मिल जाए, और उस पैरामीटर्स में रहते हुए बजट बड़ा बैलेंस्ड, जो बड़ा रिफाइंड करके इन्होंने दिया। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। देखिए, हम जनवरी से यही सुनते आ रहे हैं कि IMF की अभी पैसे आ रहे हैं, अभी वो नेगोशिएशन हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, ये है वो है, अभी तक भी तो चलते आ रहे हैं। येट आगे, इससे आगे वे फॉरवर्ड जो है वो बहुत मुश्किल है। IMF के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स इस किस्म के हैं कि शायद, अगर अल्लाह ना करे, अगर 30 जून तक हमें पैसे नहीं मिलते IMF के, अगर इसके बाद जुलाई में जब जाते हैं, तो वी शुड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, और अपनी एमनेस्टीज जिस किस्म की भी देनी है, स्पेशली नंबर 1 द डॉलर एमनेस्टी। आपके इस वक्त फॉरगेट अबाउट बिजनेस कम्युनिटी, जो कि लैंडलॉर्ड्स हैं, ये दूसरे सैलरीड पेशेंट जो लोग भी हैं, वो भी अपनी सैलरी जब लेते हैं तो अगले दिन जाके वो डॉलर कन्वर्ट करके बैठ जाते हैं। आइदर दे आर वेरी मच होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक कि इस तरह इन अ वे कि शायद ये डॉलर एकदम जंप करके 350 का हो जाएगा। तो वी एज्यूम कि जब इस किस्म की एमनेस्टीज आनी चाहिए, और बल्कि हमारे तो ये भी, जिस तरह से भी आपने देखा होगा, वो सेक्शन 1114 का जो सेक्शन था जिसमें 1 लाख बाहर से रेमिटेंस आ रही है, वी गेव देम दिस प्रपोजल कि सर इसको आप बैरियर खोल दें, every dollar which comes into Pakistan it matters a lot। तो वो एक लाख क्या, 1 मिलियन, एक मिलियन डॉलर भेजना चाहिए था। बहुत कुछ हो सकता है सर। उसके साथ साथ जो है ना, मैं एक चीज़ जी। इसमें एक चीज़ जो अगर हो जाती तो इट वुड हैव बीन वेरी वर्थ वाइल, वेरी अचीविंग गोल हो जाता। देखिए, हम अपनी डायस्पोरा जो पाकिस्तान अब्रॉड बैठे हैं, उनसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसे लेकर आए और इधर आके अपनी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट किस सूरत में करें कि शायद घर ले देंगे हम। ठीक है सर। अहमद भाई, थैंक यू सो मच, एंड अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबकी सोच पे ज्वाइन करने के लिए, एंड आई होप कि आप लोग एंजॉय किया होगा और अवाम ने भी एंजॉय किया होगा। बाबू बजट, हमारा बाबू बजट था, और बहुत अच्छा नाम दिया सर आपने। थैंक यू सो मच फॉर इट। और यहाँ पे लेते हैं बिल्कुल जनाब, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर फुल ऑन शो जो है तैयार है आपके लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। सुबह की सोच में एक मर्तबा फिर आप सबको खुशामदीद। किसी के हाथ में पॉलिश की डिब्बी तो किसी के हाथ में मोटरसाइकिल का टायर, और कोई लगा रहा है झाड़ू और किसी को बाजार में जा रहा है पीटा। ये मंजर खुशी की जा रही है आज के उन तख्त नशीनों के लिए जिनके हाथ में कौम का मुस्तकबिल है, लेकिन कौम के बच्चे अपनी कच्ची उम्रों में ही इतनी पक्की मजदूरियां करते नजर आते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पेट और भूख को मिटाने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आज मनाया जा रहा है बच्चों की मजदूरी के खिलाफ आलमी दिन, और इस दिन को मनाने का मकसद उन बच्चों के लिए आवाज़ उठानी है जो कि स्कूलों से बाहर हैं और तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़, जी हाँ 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम की नेमत से महरूम हैं। आज के दिन उन बच्चों के लिए बात करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन सवाल ये है कि अमली हिकमत क्या हो सकती है।
اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں. منیر صاحب ذرا انٹروڈیوس بالکل جی, کروائیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اکبر علی صاحب جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور جو کہ چائلڈ لیبر کے اگینسٹ بہت سارا کام آلریڈی کر رہے ہیں, تو انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک بہت ہی اہم سوشل جو ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر کام کیا, آواز بھی اٹھائی ہے. تو تھوڑا واک تھرو کریں ہمیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس وقت آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں پہ. اور جو چائلڈ لیبر ہے, بچوں کی مزدوری, جس طرح آپ نے کہا, یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے پاکستان میں. ہم تو پریکٹیکلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. میرے گزشتہ 20 سال سے جو آؤٹ آف اسکول بچے جن کو ہم, ظاہر ہے وہی چائلڈ لیبر میں انوالو ہے, بالکل, جو اسکول نہیں جاتے. جب بچے کہتے ہیں تو آفیشیلی بھی بچوں کی نا وہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں بچے جو ہیں, تو ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. بائی آور کنسٹیٹیوشن اور ہماری نیشنل کمٹمنٹ ہاؤس. اب انہی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے میں پچھلے 20-25 سال سے اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. اور گلگت بلتستان سے میرا بنیادی طور پہ تعلق ہے, تو وہاں میں کام کرتا رہا. ابھی پچھلے 5 سال سے نیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں. تو جو چائلڈ لیبر ہے یہ اتنا, اس کو آپ نے بہت اچھا یہ کیا, اس کو ہائی لائٹ کیا. اور اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ میں کل دیکھ رہا تھا یونیسیف جو بچوں پہ کام کرتی ہے, بچوں کی ویلفیئر اس کے لیے, تو ان کی ویب سائٹ کے مطابق جو ہے 3.3 ملین بچے جو ہے نا اس وقت چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. یہ مطلب بہت بڑا کوشچن ہے کہ 3.3 ملین اس طرح سے جو ہے. تو بیسیکلی اگر آپ بچوں کو اگر یہی ایک کام کریں, ان کو جس ایج میں ان کو اسکول میں ہونا چاہیے ان میں اسکولوں میں لائیں, ان کو ایجوکیشن کی ایکسیس دے دیں, تو چائلڈ لیبر کو بہت بڑی حد تک آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے بچے اسکول نہیں جاتے اور کیا کریں, والدین جو ہے ان کو کام پہ, غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے یقیناً, تو ان کو کام پہ لگاتے ہیں. پھر آپ جس طرح شارٹ ہنٹ دے رہا ہے کہ کوئی ٹائر کی مرمت کر رہا ہے, کوئی کچرے چن رہا ہے, تو یہ بہت بڑا اس وقت ملک میں ایشو ہے. تو اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی, پاکستان میں کیوں نہیں کام ہو رہا ہے بچوں کے؟ اگر ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نظر سے ایسا کچھ گزرا نہیں. پاکستان میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, اب ہمارے ملک میں جو ہے نا, ایک تو لوگ کہتے ہیں نا لاز تو ہر ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. UN جو کنونشن سب سے پہلے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے پاس وہ کیا تھا, اور اس کا پاکستان سگنیٹری بھی ہے, جس میں باقاعدہ منع کیا ہوا ہے کہ بچوں کو جو ہے ان کو چائلڈ لیبر جو ہے بالکل منع ہے. وہ ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں ماڈرن فارم آف سلیوری. اچھا, تو اس پہ سائن بھی کیا ہوا ہے. پاکستان کے اپنے قوانین نے ایکٹ بنا ہوا ہے, لیکن اب ان ایکٹ کو امپلیمنٹ کر کے اس کو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم نہیں ہے کہ بھئی یہ ایکٹ ہے, اس کے مطابق اس کو ان کا رائٹ دینا چاہیے, اور ہو آر ریسپانسبل ٹو انشور دوز رائٹس فار چلڈرن. جو ہے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اچھے قوانین ہیں, ان کی انفورسمنٹ قسمتی سے نہیں ہے. تو ان کو اگر انفورس کیا جائے لاز کو حقی معنوں میں, اور جو بھی مطلب جس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ان کو یہ احساس ہونا کہ میں نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنی اسی چیز کے لیے. کاش یہ ہو جائے پاکستان میں, سر پاکستان سیدھا ہی نہ ہو جائے. سر, آپ نے جو چائلڈ لیبر کے خلاف جو کام کیے, جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, اس میں آپ دیکھیں پچھلے کوئی 2010-11 کے آس مجھے ایگزیکٹ سن یاد نہیں, پاکستان میں آرٹیکل 25 ہے جو ہمارے کنسٹیٹیوشن میں نا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام سے مشہور ہے, آرٹیکل 25 ہے, جس کے مطابق یہ ہے کہ جو 5 سے 16 سال تک کے جو عمر کے بچے ہیں ان کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, پہلے تو وہ قانون پاس ہوا, اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلیوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو ایکٹ کریں, مطلب ایکٹ بنائیں. تو بہت سارے اسمبلی نے بنائے بھی ہیں, اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ ہوئے ہیں. تو میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں, نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ, جو پاکستان میں انسانی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں, تو اس کا ایک بنیادی جو ہے انسانی ترقی کے لیے ایک تو تعلیم اور صحت ہے. جب تعلیم ہوگی اور صحت کی
सहूलत होगी तो जाके इंसानी बिल्कुल। ह्यूमन डेवलपमेंट होगी. तो हम जो है उसके एजुकेशन के जो पहलू पे और खुसूसन जो आर्टिकल 25A है राइट टू एजुकेशन, उस पे पिछले जब से मैं 2010 में मैं NCSD ज्वाइन किया हूँ, तो तब से हम पाकिस्तान के मतलब पूरे तूल अर्ज़ में हमारे इदारे के ऑफिसर्स हैं NCSD के तकरीबन कोई 130 के करीब इस वक्त जो इज़ला के अंदर हमारे प्रेजेंस है. तो हम ये करते हैं कि अब बच्चे स्कूल आउट ऑफ स्कूल क्यों नहीं जाते, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि मेजर रीज़न तो ये उनकी बिल्कुल क्लोज इजी एक्सेस में स्कूल नहीं है. इजी एक्सेस में स्कूल नहीं, ज़ाहिर है 4-5 साल का 6 साल का बच्चा तो इस गर्मी में 1.5-2 किलोमीटर तो नहीं दूर जा सकते. एक तो स्कूल नहीं है, या अगर स्कूल है तो इतनी पावर्टी है कि लोगों को किताब और वर्दी के पैसे नहीं है. तो हम ये करते हैं, पिछले मेरा अपना मैं सुपरवाइज़ करता रहा हूँ कि हम उन जगहों पे जाके स्कूल खोलते हैं कम्युनिटी के ताउन से, और फ़ौरन वो विद इन 1 मंथ वो स्कूल खुल जाता है. और जो बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं या चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व मुख्तलिफ जगहों पे, तो कम्युनिटी से मिल के, वालिदैन से मिल के उनको मोटिवेट करके उनको स्कूल में लाते हैं और उनको फ्री किताबें देते हैं, टीचर की ट्रेनिंग देते हैं. और हमारे इदारे ने अभी तक जो है मतलब जब से इस्टेब्लिश हुआ है पिछले 15-20 सालों में कोई मिलियंस में बच्चों को जो स्कूल में लाए. रिसेंटली मैं आपको बता दूं, हम हैरान हुए, इस्लामाबाद जो हमारे नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया था कि हम इस्लामाबाद में 0 आउट ऑफ स्कूल बच्चे करेंगे. यानी इस जून की बाई एंड ऑफ जून जो है, यही वाला महीना जो है, जून के एंड तक इस्लामाबाद में कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होगा. हाल तो ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे इस वक्त काम हो रहे हैं. सिर्फ जो NCSD है हमारा जो इदारा है, वो उनका हमें टारगेट मिला, क्योंकि मिनिस्ट्री के और भी इदारे हैं, सबसे बड़ा इदारा हमें टारगेट मिला है कि हम 26,000 बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं. और उसमें से कोई 18,000 के करीब जो है हम बाकायदा खुद से अपनी सिस्टम के अंदर नए स्कूल खोल के इन्वॉल्व करेंगे. बहुत अच्छी बात है सर. वैसे अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें सबसे कम बजट जो है वो तालीम के लिए ही रखा गया है. हाँ, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मतलब आप पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें ना, बजट सारा मैंने एक दफ़ा स्टडी भी किया था कि मतलब 2% ऑफ GDP से कभी ऊपर नहीं गए. एक साल में 2.2 या गया था. लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि जो मुल्क है मुख्तलिफ ममालिक, वो अपनी GDP का कम अज़ कम 4% जो है ना वो एजुकेशन को देना चाहिए. तो अब उसके लिए बहुत बड़ा एडवोकेसी, आप मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप एजुकेशन को फोकस करें और मतलब पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करें कि भाई आप एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखें. तो ये इसका एक सूरत है. लेकिन आप हम ये देखते हैं कि मीडिया पे भी इतना ज़्यादा हाईलाइट जो है मतलब नहीं होता करते हैं. हम जब भी देखते हैं तो पॉलिटिकल ये वो डिस्कशन. हाँ जी, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह हम तो जो जितने भी इश्यूज होते हैं हम उनको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी समझते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे. अच्छा, इसमें ना कभी मेरा भी किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ या फैमिलीज़ के साथ कि भाई आप अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दे रहे, आपने ख़ुद उनको लेबर के लिए जो है ना बाहर भेजा हुआ है. बेसिकली तो फिर वो ये कहते हैं कि घर का ख़र्चा निकालने के लिए एक बंदे की जो है फॉर एग्जांपल बाप काम कर रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा, तो औलाद को उनको मजबूरन बाहर निकालना पड़ता है स्कूलों से और उनको काम की तरफ डालना पड़ता है कि ये घर में कोई आमदन लेकर आएंगे. इस सिनेरियो के अंदर भी अगेन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको सपोर्ट करें, वो फैमिली को सपोर्ट करें और उस बच्चे की एजुकेशन के ऊपर फोकस करें. इस सिनेरियो के अंदर के क्या हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट? अच्छा, इसमें ये हमें प्रैक्टिकली जब हम ये आज इस वक्त जो कैंपेन है ना, कल की डेट तक हमने कोई 20,000 के करीब बच्चे आइडेंटिफाई किए और मैंने ख़ुद तो जो है पिछले कोई दर्जन के करीब स्कूलों के इफ्तिताह के बगैर प्रैक्टिकल उसमें जाके. अच्छा, रिसेंटली मैंने कोई चाइल्ड लेबर की कोई एक वर्कशॉप भी अटेंड किया, तो वहाँ भी ये चीज़ डिस्कस जो आप कह रहे हैं ना कि लोग एक लेम एक्सक्यूज़ के तौर पे मफरूज़े पेश करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए. ठीक है जी हम गरीब है, हमने किसी से कर्जा लिया हो तो बच्चा जाके उसको हेल्प करते हैं या घर के लिए इनकम करते हैं तो कोई नहीं जी. बात ये भी कहते हैं कि जो हमारे बच्चे जो डोमेस्टिक लेबर में हैं, किसी अमीर के घर में काम करते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं होता, वो उन बच्चों के साथ खेलते हैं. हालांकि ये सारे इंसान की ना अननेसेसरी
जस्टिफाई करने की बातें हैं कि जब आप किसी के यहाँ आपके बच्चे को, जब उसके अपने खेल कूद के दिन होते हैं, कि आप किसी और के बच्चे को केयर करने के लिए जब भेजते हैं तो उसकी तो आज़ादी है, उसकी जो फ्री विल है वो तो ख़त्म हो जाती है। रिसेंटली हम जब गए मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में, आप हैरान होंगे, ये बहुत बड़ी इस्लामाबाद के अंदर जो है मुख्तलिफ ऐसे मोहल्ले हैं कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा दूर है, ठीक है जी, वहाँ तक तो जाना मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, प्राइवेट स्कूल तो करीब है लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो भेज नहीं सकते। तो इतने सारे बच्चे हैं मुख्तलिफ मोहल्लों में, 30 35 40 50 जो है, जिनको हम उनके साथ डिस्कस कर कम्युनिटी के साथ उनको स्कूलों में ला रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा इधर ये सराय खरबूजा साइट पे गए थे, तो कोई माइग्रेंट जो अफ़गान फैमिलीज़ हैं, तो वो दिन को जो है वो कच्चा चुनते हैं। तो हमने उनको ये कहा, यार आप इस तरह करें, आप 3 घंटे निकालें इन बच्चों के लिए कि 3 घंटे तो स्कूल में आप भेजें, जो हम आपको आपके घर की दहलीज पे स्कूल खोल रहे हैं, और इसके बाद आपकी बहुत मजबूरी है तो हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते कि नहीं जी आप नहीं भेजना। तो कम से कम वो जो 3 घंटे हैं वो तो उनको चाइल्ड लेबर से निजात मिल गई। और जब एजुकेशन में जब इन्वॉल्व करते हैं तो फिर वालिदैन को भी शौक़ आता है, यार बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसको इस काम में इन्वॉल्व सर करें। आखिरी सवाल, बहुत 1 मिनट है हमारे पास, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। आखिरी सवाल ये है कि जो एक तालीमी इस वक्त हमारा निज़ाम है, इसको भी तब्दील होने की ज़रूरत है टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, इसमें यह है कि बहुत से जो बाहर जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे तो होता ही ऐसा है कि शुरू में बच्चे की मतलब पहला 2-3 साल तो उसको उसके अपने माहौल में उनकी परवरिश करते और ये देखते हैं कि बच्चा की मैलान किस तरफ है, और उस हिसाब से उनको फिर मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में डिवाइड करते ऐसे ही करते हैं बाहर। तो हमें एक तो यही मतलब अलमिया है कि हम जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं उनकी जो अच्छे मॉडल्स हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे हमारा हमसाया मुल्क क्यों ना हो, हमारे सिमिलर जो कंटेक्स्ट के कंट्रीज़ हैं। यानी आप देखें कि बाकी अक्सर हमने देखा है ममालिक जो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो ना बेहतर हो रही है, हमारे जो है मतलब अभी तक स्टैंड स्टिल है, इंडिकेटर्स इम्प्रूव नहीं हो रहे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन को बिल्कुल रिफॉर्म करके बिल्कुल नए सिरे से उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बहुत अहम टॉपिक है, कीप इट अप, और ये जो काम है आप जारी रखें। और ये एक जंग है मैं समझता हूँ, और ये एक जिहाद है, मैं तो इसको ये भी कह सकता हूँ। ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ख़वातीन और हज़रात, अब चलते हैं हम कराची की तरफ। आप लोगों को पता है वहाँ पे जो है तूफ़ान भी एक्सपेक्टेड है कराची की साहिल पे, और एक अच्छी खबर भी है कि जो रशियन ऑयल है उसकी जो पहली खेप है वो भी जो है पहुँच चुकी है। समुद्री तूफ़ान बेपरजॉय कराची से तकरीबन 690 किलोमीटर दूर है, और कमिश्नर कराची की हिदायत जारी है कि बहरे अरब में जो है बनने वाले समुद्री तूफ़ान कराची से सिर्फ 690 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के साहिल तक पहुंचने से पहले तूफ़ान में तेज़ी का इम्कान है, और कमिश्नर कराची ने शहर भर से जो है बिल बोर्ड्स जो हैं, साइन बोर्ड्स में इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म दिया है, क्योंकि जो तेज़ हवाएं चलेंगी और उससे जो है नुकसान में कमी आ सकती है। अब इसके ऊपर मज़ीद बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद अब्बास साहब ने। आप मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, और उनको वेलकम करते हैं, उनसे मज़ीद अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपके साथ हमें हमारे ब्यूरो चीफ कराची ने भी ज्वाइन किया, खुर्शीद रहमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, शाहिद साहब से आगाज़ करते हैं। शाहिद साहब, इस वक्त जो तूफ़ान आ रहा है, इसकी क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और ये साहिल तक कब तक एक्सपेक्टेड है, और इससे जो कराची और जो पाकिस्तान की साहिल है, जो पट्टी है, उस पर कितना नुकसान जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, ये अपनी नोयत का एक वाहद सिलसिला जो पहले डेवलप होने के 5 तारीख के बाद डेवलप होने के बाद पहले इसके डायरेक्शन जो थी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ थी, फिर कुछ देर स्टे करने के बाद और ये ग्रो हुआ और इसकी डायरेक्शन टोटली रिवर्स होनी शुरू हुई। अच्छा, नॉर्थ की तरफ हुई, अब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो इसकी डायरेक्शन है, और कराची से तकरीबन 650 से 700 किलोमीटर फासले पे है। और अभी ये कोई 15 तारीख को 14 की नाइट और 15 को ये हिट करेगा इंडियन गुजरात और हमारे जो उसके पेरिफेरी के साउथ ईस्ट सिंध के इलाके हैं उसको ये हिट करेगा, जिसमें ये कि अभी भी इसकी जो कोर में, इसकी सेंट्रल कोर में जो विंड्स है मोर देन 150 किलोमीटर की स्पीड से इसकी मूव चल रही है।
तो Alright. इसमें थोड़ा और इजाफा अभी अगले 2 दिनों में होगा। जी जी। और इसमें से ज्यादा जो एरिया जो इसके अंडर द इन्फ्लुएंस और इफेक्ट आएंगे हिट करने के बाद सरफेस पे, तो उसमें ज्यादा तो इंडियन है, और हमारे जो है केटी बंदर और दूसरे जो है हमारे बदीन के और थट्टा के और जो साउथ ईस्टर्न सिंध के सलफार के वो इलाके अंडर द इन्फ्लुएंस आएंगे, जहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चलेंगी। और जो रेन है, रेन की तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी की नहीं है इधर, लेकिन ये कि विंड जो है वो जो है बहुत 100 किलोमीटर से चल जाएंगी। जी, ये बताइएगा कि साहिल के करीब जो लोग रह रहे होते हैं, जिनके घर बार होते हैं, क्या उनको खाली करने का हुक्म दे दिया गया है? देखिए जी, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बिल्कुल मैंडेट है, और उन्होंने 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको तो बकायदा जो है उसको शिफ्टिंग का और प्लान उनको दिया है, और उनको उम्मीद है कि वो इस पे हम लोगों के जो घर होते हैं उन इलाका के वो बहुत ज्यादा ठीक है शाहिद साहब, इस पे हम लोग जो है ना खुर्शीद रहमानी से भी मजीद अपडेट लेते हैं कि खुर्शीद साहब ये बताएं कि जो अब ये तूफान आने वाला है उसकी जो करीबी जो जगहें हैं वहाँ पे जो आवाम रह रही है उसको जो इवैक्यूएट करने के लिए कोई हुक्म या कोई प्लान बनाया गया है? देखिए, जो समुद्री तूफान की जो आमद की इत्तलात आ रही हैं, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि जो बदीन, ठट्टा, हैदराबाद के जो इलाके हैं और उसके अतराफ के जो इलाके हैं, वहाँ के इलाके के जो मुतल्लिका हुक्काम हैं उनको भी, और जो वहाँ की इंतज़ामिया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर जो महकमा जाती अमला वहाँ मौजूद है, उनको सख्ती से हिदायत की कि वो उन इलाकों का दौरा करें, और जो वहाँ पर जो साहिली पट्टी पर लोग मुकीम हैं, जो माहीगीर तबका वहाँ पर एक बड़ी तादाद है जो साहिली पट्टी पर माहीगीर रहते हैं, उनको भी ये हिदायत जारी की है कि वो भी उनको महफूज किसी मकाम पर मुंतकिल किया जाए। जब हमारी कल इब्राहिम हैदरी पर मौजूद कुछ माहीगीरों से बात हुई, उनका ये कहना था कि उनको अभी तक किसी किस्म की कोई हिफाजती इकदाम की इत्तलात नहीं है कि अभी वो तक जी। और इसके अलावा जो वहाँ माहीगीर तबका रहता है, उनका ये कहना था कि हमारी बहुत सारे जो कश्तीबान हैं वो गहरे समंदर में मौजूद हैं, उनकी वापसी का भी वो दुआएं कर रहे हैं कि वो किसी तरह से वापस जो है वो साहिल पर आ जाएं। 12वां जो अलर्ट है वो महकमा मौसमियात ने जारी किया है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी कमिश्नर कराची की सदारत में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम जो कराची के महकमा जाती अमला है, अफसरान है, वो उसमें शरीक हुए। उन्होंने उनकी तरफ से ये हिदायत जारी की कि कराची समेत सिंध भर के जो दीगर अस्पताल हैं उनके अंदर भी अलर्ट जारी किया गया है कि वो किसी भी मुमकिन खतरे के बाद। अच्छा खुर्शीद, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है इस पे जो है मुकम्मल इकदाम उठाए ताकि हिफाजत जो है हमारे शहरियों की यकीनी बनाई जाए। आखिर के अंदर ये बताएं कि एक खुशखबरी भी है, जो रशियन ऑयल है वो कराची जो है वो पहुंच गई, उसकी पहली खेप, उसके बारे में बताएं। ये रशिया की जो क्रूड ऑयल है वो कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज ये खुशखबरी थी पाकिस्तान के अवाम के लिए कि जो तेल की कमी है उसको पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत का ये बड़ा एहसन इक़दाम है। इस वजह से शहरियों में पूरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ी है। ये क्रूड ऑयल आया है और ये और जहाज भी उसकी आमद की जो है वो तवक्को की जा रही है कि वो भी क्रूड ऑयल का जो जहाज है वो पाकिस्तान की बंदरगाह पर आएगा। इस हवाले से जो वफाकी वजीर हैं मुस्तफीक मलिक, उनका कहना था कि पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो है वो एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और दीगर जो गैस की भी जो किल्लत है उसको भी पूरा करने के लिए पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के ऊपर LPG भी पहुंच गई है पाकिस्तान। अच्छी चीजें हो रही हैं। आखिरकार कुछ अच्छा सुनने को मिला। चलें जी, ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच जी। शाहिद अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है तूफान की जो है अपडेट करने के लिए, और खुर्शीद रहमानी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कराची खैर आफियत से रहेगा। वैसे इससे पहले भी काफ़ी मरतबा इस किस्म की न्यूज़ सुनने में आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कराची सेफ रहा है। लेकिन फिर भी जो शहरी हैं कराची के, वो पता नहीं क्यों उस तूफान को भी देखने के लिए वहाँ जाते हैं कि चल वहाँ तूफान देख के आते हैं, तो प्लीज़ इसलिए फिर दिफा लगा दी जाती है ना वहाँ पे डिफरेंट के भाई वहाँ तक ना पहुंचे, तो शहरी हैं प्लीज वो दूर ही रहें। चलें जी, अब यहाँ पे लेने हमने न्यूज़ ब्रेक, आपसे मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। सुबह की सोच में आप सबको एक मर्तबा फिर भरपूर वेलकम। वही एनर्जी रखनी चाहिए ना, बिल्कुल 1 जी, घंटे वही। 2 घंटे। तो प्रोग्राम फुल ऑन है, था, रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अब वक्त हुआ जाता है इंटरेस्टिंग वीडियोस का। आज जरा आप बताएं क्या इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं आप? बहुत ज़बरदस्त वीडियोस हैं जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जी के। और एक बरूप या स्याह जो है ज़मीन के करीब से गुजरने का इम्कान है जी, और नासा ने कहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये ज़मीन के पास से गुजरा तो हफ्तों तक इंटरनेट जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ओए होए होए होए, ये तो और बड़ी नासा की रिपोर्ट है। तशवीशनाक बात है भाई। पाकिस्तान का इंटरनेट जो है कभी शार्क समंदर के अंदर से वायर जो है वो चबा लेती है, और अब ये जो नासा ने रिपोर्ट दी है कि जी कोई ऊपर से खला से कोई चीज़ गुजर के जाने वाली है, जिसमें अगर वो गुजर गई तो वो इंटरनेट जो है जो ब्लॉक हो सकता है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। लेकिन ये ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जो है ज़मीन के ऊपर से गुजरती रहती हैं। कुछ जो हैं वो गिर जाती हैं पाकिस्तान पे, फिर वो बस मैं नहीं आगे मैं नहीं बोल रहा हूँ आगे। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। नेक्स्ट स्टोरी पर आते हैं जनाब। महविश हयात जो कि हमारी जानी मानी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपने मद्दाहों को सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। उनकी नई आने वाली फिल्म 123वां में अपना किरदार जो है वो बता रही हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहली मर्तबा किसी मूवी में इस किरदार में साड़ी जो है वो पहनी है। बड़ी अच्छी लग रही होंगी वो अच्छा, फॉर श्योर। साड़ी पहनी है उन्होंने, और इस फिल्म के लिए काफ़ी पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। उनका कहना है कि मद्दाहों को ये जो फिल्म में उनका किरदार है और जो लुक है उनकी, एक डिफरेंट लुक के साथ वो इस मूवी में नज़र आएंगी, वो पसंद की जाएंगी। तो अब देखते हैं कि कैसी होगी मूवी। मुझे लगा कि इस बार शायद वो कोई जिस तरीके से हमारे मेल एक्टर्स जो हैं वो जो है ट्रांस एक्टर्स जो हैं उनके रोल्स में आ रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त वर्सेटाइल जो है एक्टिंग कर रही हैं। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से वो आपने कहा ना सरप्राइज करेंगी, तो मुझे लगा महविश हयात भी कोई ऐसा जो है वो रोल जो है वो सिलेक्ट करने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लुक से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि लुक से ज़्यादा स्टोरी के ऊपर, ज़्यादा कंटेंट के ऊपर ध्यान होना चाहिए। हमारे यहाँ अभी तक जितनी मूवीज़ बनी हैं, जब लोग सिनेमा में जाते हैं बड़े शौक से देखने के लिए, तो वापस आके जब मैं पूछती हूँ कैसी लगी, तो वो कहते हैं समझ में नहीं आया, बस चल रही थी। तो हमारे यहाँ कपड़ों पे और चीज़ों पे, डांसेस पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। स्टोरी लाइन भी कुछ चीज़ होती है, स्टोरी भी होनी चाहिए। आखिरकार स्टोरी के ऊपर ही तो वो फिल्म जो है वो चलती है। बहरहाल जी, मौसमियाती रुझान जो है एल नीनो का आगाज़, अमरीकी साइंसदानों ने तस्दीक की है कि एल नीनो का आगाज़ हो गया है, और माहिरीन के मुताबिक इसके बाइस 2024 दुनिया का तारीख का गर्म तरीन साल जो है वो साबित हो सकता है। और साइंसदानों के मुताबिक एल नीनो के बाइस औसत आलमी दर्जा हरारत में इजाफा भी हो सकता है, और 2016 से ज़्यादा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से आप लोगों को पता है 2016 को भी अभी दुनिया की तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया जाता है, जिसके दौरान एल नीनो के 22 दर्जा हरारत का रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका था, और रवा ही साल 2016 से भी कम जो है गर्म तरीन जो है वो साबित हो सकता है। हम सबको पता है क्लाइमेट चेंज जो है, इस वक्त हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं, हमें रोज पता लग रहा होता है कि दिन में इतनी सख्त धूप होती है। काले हो गए ड्राइव कर करके। ये काले हैं, ये जरा फोकस करें हाथ पे जरा। ये हाथ दिखाएं। जब हम लोग जा रहे होते हैं तो स्टीयरिंग के ऊपर पूरा ऐसे हाथ होता है ना, हमारे गाड़ी जहाँ हम लोग पार्क करते हैं ना, तो वो इतना गर्म हो रहा होता है। फेस तो चले आपका फिर भी गाड़ी में अंदर ही होता है, हाथ आपके बिल्कुल आगे की तरफ होते हैं। ऐसे हाथ आगे की तरफ होते, तो मेरे हाथ जो है वो काले हो चुके हैं धूप की वजह से। सन ब्लॉक भी काम करना बंद कर गए। अभी नौशीन आने वाली है हमारे शो में, उनसे पूछेंगे अच्छा सन ब्लॉक बताएं। वो इधर ही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी। भारत में 6 घंटे के अंदर 2000 और करीबन 150 जोड़ों की शादी का आलमी रिकॉर्ड। आप भी पहुंच जाते, मिक्स में वही हो जाती शादी आपकी। रह गए नहीं, मैं भारत में नहीं करनी मैंने। तो शादी के लिए जाना था मुझे ना। पाकिस्तानी जो है अच्छी लगती है। Okay. अच्छा जी, ये जो आलमी रिकॉर्ड है भारत के एक ट्रस्ट ने इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करके कायम किया है। इस तकरीब में हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब के जो अफराद थे उनकी शादियां करवाई गईं। बेखस इसके अलावा भी होंगे और क्रिश्चियंस और दूसरी चीज़ों। वैसे ये स्टोरी करने का जो मकसद है ना, मैं अपनी टीम का समझ सकता हूँ, क्योंकि आजकल मुझे हर कोई कहता है कि भाई खुदा का वास्ता है आप भी शादी कर लें। होगी। मैं तो कहती हूँ शो में ही करवाएंगे आपकी शादी, हम शो में ही करवाएंगे शादी। वो क्या वो गाना भी आया था ना कि
कौन सा गाना था वो? हाँ, हम अपनी टीम की इज्तिमाई शादियाँ अरेंज करते हैं। ABN न्यूज़ के जितने लोग शादी करना चाहते हैं, हमारे मॉर्निंग सुबह की सोच में मॉर्निंग शो में इज्तिमाई शादी का एक होगा ग्रैंड। वैसे अब तक किसी मॉर्निंग शो में ऐसा हुआ नहीं है, इज्तिमाई शादी वाला सीन हम अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे। सबसे पहले इन्हीं का निकाह पढ़वाएंगे। अल्लाहु अकबर। सो लाइव हम लड़कियां ढूंढ रहे हैं। लड़कियों अपनी अपनी प्रोफाइल्स हमें ABN पे भेजिए। Oh God, oh God, oh God. चले जी, PTCL पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने अपने खुसूसी इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी ऐलान कर दिया गया है। नौजवानों चौकन्ना हो जाओ, जो पाकिस्तानी तलबा को काम के कीमती तजर्बे के साथ अपने मौसम गर्मा को बेहतरीन इस्तेमाल करने का एक दिलचस्प मौका जो है फराहम कर रहा है। और इस प्रोग्राम का मकसद है तलबा को प्रैक्टिकल इल्म हासिल करने और पेशा वराना माहौल में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका फराहम करना है। और बहुत ज़बरदस्त ये एक प्लान है जो कि PTCL की तरफ से हुआ है। आपने बहुत अच्छा किया है, इंटर्नशिप मौका जो दिया है। और जितने भी हमारे नौजवान हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ब्रेक होने वाली हैं, कॉलेजेस में भी ब्रेक्स होने वाली हैं, स्कूल्स में भी ब्रेक्स होने वाली हैं, हुकूमत में भी ब्रेक आने वाली है कुछ अरसे में, तो सारे जो हैं PTCL में जाके इंटर्नशिप करें। और एक मेरा आप लोगों ने काम करना है, PTCL में जाके ना इंटरनेट ठीक कर दें, खुदा का वास्ता है। बहुत स्लो आता है। ये बस ये यूनिवर्सल मसला है मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं अच्छा है। नहीं PTCL बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहरहाल जी, अब जो है नेक्स्ट में क्या? नेक्स्ट आप बताएं, जरा गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं बताऊं? अच्छा जी, मर्द और औरत दोनों की जो खूबसूरती है वो उनके बालों से ही है। क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कुदरती बाल गिरने लग जाते हैं तो परेशानी में इजाफा हो जाता है। आजकल हमें हर जगह हेयर ट्रांसप्लांट की जो सहूलत है वो नज़र आती है। डिफरेंट जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट और जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली ख़वातीन और हजरात जो डॉक्टर्स हैं वो नज़र आते हैं, उनके क्लिनिक्स नज़र आते हैं। लेकिन बहुत से अफराद के जहनों में एक सवाल होता है कि आखिरकार ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है इसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स या कि मुनफी असरात जो हैं वो उनके ऊपर मुरतब ना हो जाएं, और क्या बालों की ग्रोथ दोबारा शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती है, बाल कैसे अच्छे हो सकते हैं, बालों को कैसे लंबा और घना किया जा सकता है। इन सब बातों का और सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रूख नौशीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, इट्स नाइस टू डॉक्टर सी यू। साहिबा, थैंक यू सो मच। लाइकवाइज डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि सबसे पहला सवाल, मर्द हजरात ज़्यादा आते हैं कि ख़वातीन? ऑब्वियसली मर्द आते हैं, ख़वातीन के बाल इतनी जल्दी थोड़ी ख़वातीन आते उनके हैं। बेचारों के बाल छोड़े तो ना घर में, हाँ, वो उतार के रख रही होती है, उतार के अपने लगा रही हूँ उतार के। इसीलिए आपकी सलामत है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली। तो सोच लें आप शादी करने से पहले। मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे बालों से ज़्यादा मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता मेरे बाल कहीं भी जाएं। लेकिन आजकल वैसे लड़कियों का भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये आती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? थोड़ा कम है, रेशो चूज़ करना पड़ता है। पहले तो देखना है कि उनको ज़रूरत है भी नहीं है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। नॉर्मली फॉरहेड बड़ा होता है ख़वातीन का, या डेंसिटी इशू होता है। अगर आप ये कहें कि हम एक साल में रेशो निकालें तो 3 से 4 ख़वातीन आती हैं, और अब तो बैरून ममालिक से भी ख़वातीन आ रही हैं। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव के अलावा पैसा तो एक अलग मैटर है, क्वालिटी वो नहीं है जो यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग दे रहे हैं। अभी लास्ट ईयर मेरे पास एक कोरिया से खातून आई थी, वो पाकिस्तान में ही हैं इस वक्त। अच्छा, वेरी गुड। तो उन्होंने जब वहाँ चेक किया और यहाँ चेक किया, शी वाज सैटिस्फाइड। अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम बहुत अच्छा हुआ, और वो उनके साथ वो वापस जब गई तो उनके सारे दोस्त अहबाब देख के हैरान हो गए कि क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का काम हो सकता है, इतना अच्छा, इतना क्वालिटी ओरिएंटेड। इतना बुरा इमेज बन चुका है पाकिस्तान। बिल्कुल सारे भी बाल लग सकते हैं। वो लोग हैरान हो रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ पहुंचा हुआ है। और वो कोरिया में भी जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, इवन के उनके कुछ एक्टर्स का मैंने देखा है, वो इतना अच्छा या इतना क्वालिटी, या आप ये कहें कि इतना मेजरमेंट्स के साथ नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उससे लड़ाई करते हैं, नहीं यहाँ नहीं हो सकता, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो नॉर्मली मैंने कोरियन एक्टर्स का देखा है कि उनके फॉरहेड बड़े होते हैं, तो वो जहाँ कहते हैं शायद वहाँ से ही लाइन लगी होती है, और वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो मेन जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा चीज़, अगर आप फोकस करें फिल्मों का, जनरल पब्लिक, पहले इतना ज़्यादा रेशो नहीं था। अभी आप किसी मॉल में जाएं तो आपको किसी ने कराया होगा, वो घूम रहा होगा, पता लग जाएगा। मतलब वो फ्रेश मैं बात कर रही हूँ, और जो पुराना है
وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے. وہ تو ریشو بہت بڑھ گئی ہے. شروعات میں کچھ سال پہلے تو کوئی کرانا ہی نہیں چاہتا تھا, اسے کہتے تھے تو وہ کہتے نو بڑے سائیڈ افیکٹس ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ایک انڈسٹری بنی ہے, آپ سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. بالکل. اور تھوڑی سی چیزیں بھی ایڈوانس ہو گئی ہیں. پین کا فیکٹر چلا گیا, FUT تھا جس میں وہ پیس کٹ کر کے اسٹچ پہلے تو کرتے ڈاکٹر تھے. صاحبہ یہ صرف سیلیبریٹیز کی حد تک ہی محدود ہوا کرتا تھا نا, اب یہ ہے کہ نارمل جو لوگ ہیں وہ بھی کروا رہے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. ایکسپینسو ہے, سستا بھی موجود ہے مارکیٹ میں, لیکن پھر اس کے ریزلٹس نہیں ہیں. وہ یہ ویسے ہی بات ہے جیسے آپ ایک جم ٹرینر کی بات کر لیں کہ وہ اگر آپ سستا ٹرینر ہائر کریں گے تو آپ کی باڈی برباد کر دیں گے. اگر آپ ایک اچھا ٹاپ کا ٹرینر ہائر کریں گے تو وہ پھر آپ کو کیا سے کیا بنا دے گا. ایگزیکٹلی. ویسے خالی کیا یہی حل ہے بالوں کے گر جانے کے بعد, کوئی اور کچھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اگر میل پیٹرن بالنس ہے جسے ہم گنج پن بولتے ہیں, پھر تو آپ کے پاس ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ہی آپشن ہے. اور اسے کروانے سے پہلے جو سب سے مین چیز مانی رکھتی ہے وہ ہے ریسرچ کر کے کروائیں. اور آپ تھوڑا سا اس کا اسٹڈی بھی کریں, آپ خود دیکھیں, آپ تھوڑا سا ڈوبیں, آپ سمجھیں, آپ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے. اور یہ کس اسٹیج پہ پتہ چلے کہ بھئی اب مجھے کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ یہ ڈیسیژن اب تو ایسے لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے ایج کے ساتھ, آپ کی بالنس کے پیٹرن کے ساتھ, آپ کے ڈیزائر کے ساتھ. بالفرض اب جیسے منیب کے بال بہت نیچرل, بہت اچھے ہیں, اور یہی ہیئر لائن ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بناتے ہیں. لیکن ہر دوسرا پیشنٹ جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں سے لگا دو, یہ آئی برو سے اوپر. اور ان کو یہ سمجھانا انہیں دیکھیں ان کا بھی دل ہے نا, وہ آگے رکھنا چاہتے ہوں گے تو اب لگا پھر آنکھوں میں آئیں گے نا. یہاں سے میرے نیچے بال آ رہے ہیں. اب دیکھیں ان کے ماشاءاللہ اتنی نیچرل ہیئر لائن ہے. یہ چیز یہ ہر دوسرے میل کی ہیئر لائن ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. ہر بندہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے کرنے آتا ہے تو 100 میں سے صرف 2% کہتے ہیں کہ ایسی چاہیے, 98 کہتے ہیں کہ یہاں سے لگا دیں. لٹرلی مطلب ماتھے پہ ان کو پھر سمجھانا, میں آئی بروز سے ہی لگانا شروع مطلب چاہتے کیا ہے, مطلب چاہتے ہیں کہ بس ماتھا نظر نہ آئے. واہ, ویسے ایسا کیوں ہے؟ بس لوگوں کو سائیکالوجی ایسی. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, کاشف محمود ایک ایکٹر ہیں, لائک وہ ماشاءاللہ کافی سینئر بھی ہیں. وہ جب آتے تھے تو ہم بھی انہیں چائلڈہڈ میں جب دیکھتے تھے تو ان کا ماتھا بڑا پیچھے فیل ہوتا تھا, وہ ان کی وہ پیک بنی ہوئی تھی. لیکن اب سمجھ آئیے کہ وہ نیچرل ہے. طارق عزیز صاحب کو دیکھ لیں, ان کا ماتھا جب ہم اس کام میں نہیں تھے ہمیں پیچھے فیل ہوتا تھا, پھر انہوں نے بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا, اللہ جنت نصیب کرے انہیں. لیکن وہ پھر جب بنا تو ایک ایکوریٹ نیچرل سی لائن بنی. تو اگر کوئی شخص آپ کا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہے, پھر تو آپ سمجھے آپ کرنے والے کا ہاتھ بالکل اچھا نہیں. وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کوئی جج نہ کر سکے. اب وہ اس طرح سے کرنے والے کی پرائس ہے جو کہ لوگ نہیں پے کرنا چاہتے. لوگ کہتے ہیں 4 بال آ گئے ہیں, بس نہیں تھے یہ آ گئے ہیں کافی ہے. پاکستانی. ویسے اس کے جو یہ ایک ہی بار میں پورا پروسیجر ہو جاتا ہے یا آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی ایٹ لیسٹ 2 سٹنگز تو مینڈیٹری ہوتی ہیں اگر آپ کو سارا ایریا کور کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس بیک ایریا لمیٹڈ ہے. ڈونر ایریا سے ہم ہارویسٹنگ کر رہے ہیں اور ہم جہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو ہم پورا کور کریں گے تو ڈینسٹی نہیں آئے گی. تو پہلے ہم فرنٹ کرتے ہیں اور پھر ہم کراؤن کی طرف جاتے ہیں. اچھا, ایک جو اس کا بیسک پرابلم ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو ہیئر فال ہوتا ہے جی اس کی کیا کازز ہیں بیسکلی؟ سب سے پہلی میل پیٹرن بالنس تو جینیٹکس میں ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اس کو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے, اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. سلو ڈاؤن کی بھی پرائس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, محنت ہے. نارملی جو آپ آج کل ہر دوسرے شخص کا سن رہے ہیں کہ جی بال گر رہے ہیں, پتلے ہو رہے ہیں, تھن ہو رہے ہیں, تو اس کا سب سے بڑی وجہ فوڈ ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹائم پہ سوتے نہیں ہیں. آج کل کے جتنے ینگسٹرز ہیں ساری رات جاگتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں. آپ اس کے اندر جتنا مرضی اچھا ورک آؤٹ کر لیں, جتنی مرضی اچھی ڈائٹ لے لیں, جب آپ نیچر کے اگینسٹ چلیں گے تو آپ کی باڈی ہیلدی نہیں رہے گی. یہ 2 وجوہات ہیں مین جو سمجھ آتی ہیں, کیونکہ جب آپ سوئیں گے نہیں ٹائم پہ, دن کو سوئیں گے رات کو جاگیں گے, آپ کا وائٹامن ڈی لیول کیسے مینٹین ہوگا. اور سب سے جو اہم اگلی وجہ ہے وہ ہے ڈپریشن. ہر بندہ آج کل کے دور میں ڈپریشن لے رہا ہے. اور خواتین کی جو زیادہ بڑی وجہ ہے وہ ہے ریبانڈنگ. وہ ڈیڈ اسٹریٹ بال چاہیے ہیں, وہ کرنے کی خاطر وہ سیلون میں جاتی ہیں, مہنگی ریبانڈنگ کراتی ہیں. ریبانڈنگ والے بال کو الٹیمیٹلی آپ کاٹیں گے, نیا بال آئے گا تو پھر آپ کی لک بنے گی.
وہ آپ وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. اس کی بجائے سب سے لیسٹ اگر آپ کہیں کہ ڈیمیج کس ہے تو وہ اسٹریٹنر سے آپ اسٹریٹنر یوز کر لیں. ریبانڈنگ میں ظاہر ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں پڑتا, ہلکا سا ڈرائر کرنا پڑتا ہے. اور کلرنگ والے بال بھی الٹیمیٹلی آپ نے کاٹنا ہی ہیں. لوگ نارملی شوبز والوں کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں کہ جو دیکھیے ان کے کتنے اچھے لگ رہے ہیں, تو ان کے بیک پہ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ان کو تیار کرتے ہیں. اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو میک اپ آرٹسٹ کا بھی کمال ہے. بالکل. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اٹھیں اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے, شارٹ کٹ بتا دیں. تو خواتین کی تو زیادہ وجہ یہی ہے. اور پھر ہارمونل ایشو. پہلے اگر آپ کہیں بلوغت جو تھی 16, 17 یا 15 پہ تھی, اب وہ 10, 12 پہ پہنچ گئی ہے. اور پھر جتنی جلدی آپ پہ بلوغت آئے گی آپ کو ایجنگ بھی اتنی جلدی آئے گی. آپ جتنی جلدی اس کے بعد خواتین کا ہارمونل ایشو, بچیاں ہیں ان کو پیریڈز نہیں آ رہے, وہ اس کو خوش ہو رہی ہیں, پیرنٹس کو نہیں بتا رہے. جب آپ کی باڈی کا سائیکل ہی نہیں چلے گا تو آپ کے بال تو سب سے پہلے جائیں گے. تو اگر آپ کی بیٹی ہے 20 سال سے 30 کے درمیان ہے اور اس کو سویئر ہیئر فال ہے, تو آپ اس سے یہ سوال ضرور کریں کہ بیٹا کہ آپ کو پیریڈز ریگولر آتے ہیں؟ ماں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. نارملی مائیں اگنور کرتی ہیں. اور اگلی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈائٹ آپ دیکھیں کہ ایک ہی چیز کھائے جا رہے ہیں, تو اس سے بھی زیادہ چکن جیسے بہت زیادہ کھا رہے ہیں. چکن ہو گیا, فوڈ ہو گیا, اتنا ملاوٹ ہے. ویجیٹیبلز تو آپ کسی سے پوچھیں تو وہ لوگ ویجیٹیبلز کھانا پسند نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل دالیں کھانا نہیں پسند کرتے. یہ بتائیے کہ یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے اس کا کوئی ڈرا بیک ہے, کوئی اس کا نقصان ہے؟ دیکھیں اگر اس کی ایگزامپل میں آپ کو اسی طرح سے دنیا کی جیسے گاڑی ہے, اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں, آپ رولز فالو کریں, آپ سیفٹی سے چلیں تو آپ کا کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اسی گاڑی میں آپ بیٹھ کے اندر ڈرائیو کریں تو وہ ٹکرا جائے گی, آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 1 آپ کے ٹیسٹ ایکوریٹ ہوں. نمبر 2 آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اوکے ہو, اور اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو وہ کنٹرول ریشو پہ ہو. وہ آپ کے سرجن کا ڈیسیجن ہوگا کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ کس ریشو پہ وہ سرجری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں, لائک آپ کو ڈائبٹیز بھی نہیں ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں, تو پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ سیف ہے. صرف آپ نے صحیح رائٹ کلینک چوز کرنا ہے. نارملی لوگ دیکھتے ہیں, فون ملاتے ہیں, آن کرتے ہیں, ہیلو السلام علیکم, ریٹ بتا دیں. وہ دیکھتے ہیں اچھا ادھر ہی 50,000 آ رہا ہے, ادھر 1.5 لاکھ آ رہا ہے, ادھر 70,000 آ رہا ہے. وہ کہیں گے اچھا ہم 85 والے پہ چلے جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بجٹ ہے, ہم نے اس میں کرانا ہے, تو پھر آپ یہ توقع مت رکھیں گے وہ اچھا کر کے دیں گے. جو آپ کو کم وقت دے گا, جلدی کام کرے گا, وہ نیٹ کیسے کرے گا. فار ایگزامپل جیسے مہندی ہے, مہندی کی کون ایک آرٹسٹ کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ شاہکار بنا دے گا, اور ایک اناڑی کے ہاتھ میں ہوگی تو اس سے کیا ڈیزائن دے گا. ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی مین چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں آپ ان کی ریپوٹیشن چیک کریں. اس کا آسان طریقہ ہے, آپ ان کے پاس جائیں, آپ انہیں بولیں کہ 2 بندے کا رزلٹ دے دیں. آپ اپنے دی بیسٹ کا دے دیں اور اپنا سب سے پور رزلٹ دے دیں. پور سے مطلب کہ ڈونر اگر پور ہے, کم ہے, تھن بال ہیں, تو اس پہ رزلٹ دینا سب سے مشکل ہے. ہیلدی ڈونر پہ تو ہر کوئی رزلٹ دے سکتا ہے. ان دونوں کو جا کے مل لیں, ان کے بیک پہ اسکارنگ چیک کریں, ان کی آگے سے ڈینسٹی چیک کریں, آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا اگر آپ تھوڑے کین آبزرور ہیں. لوگ نارملی اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ جو سیلز ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے وہ میری ہاں میں ہاں کتنی ملا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا جی میری یہ بات مانو گے, وہ کہیں گے مانیں گے. ہیئر لائن ادھر بنائیں گے جی, بنا دیں گے. یہ کرو گے, کر دیں گے, لائیں پیسے دیں. ان کا مقصد صرف آپ سے پیسے لینا ہے. ان کے پاس کوئی اسپیشلائزڈ پرسن نہیں ہوگا, کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک پرسن کی اسپیشلٹی نہیں ہے. سوری, یہ جھوٹ ہے. یہ ایک ٹیم ورک ہے. آپ کو اپنے ساتھ ایٹ لیسٹ 5 سے 6 لوگ ایسے رکھنے ہیں جو کہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہیں. کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی بھی کلینک اکیلے ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو پھر 3 دن میں ایک پیشنٹ ہوگا اور وہ کوالٹی بھی ڈکریز ہو جائے گی. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے. جہاں آپ کام کر رہے ہیں ان کے پاس ایک اچھی ٹیم بھی موجود ہونی چاہیے. اور اکوپمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. جتنا اچھا کوالٹی اکوپمنٹ لگائیں گے وہ ڈالرز میں آتا ہے. وہ یہاں سے سیالکوٹ میں سوری ٹو سے ابھی وہ لیول نہیں ہے کہ وہ بنا سکیں. تو لوگ بیسکلی یہی سوچتے ہیں کہ جی اچھا جہاں سستا ہو رہا ہے وہاں کرا لیں. سستے کرائیں گے تو پھر آپ تیار رہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور ایسے کیسز آتے بھی ہیں, اگر آپ کو پتہ, آف اینڈ آن سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوتی ہیں ایسی پکچرز. اور ایک کوئی آرٹسٹ بھی تھے ہمارے جن کے ساتھ بڑا ہی برا واقعہ پیش آیا تھا. انہوں نے خود ہی جواب دے دیا تھا. جی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ
میرے ٹیسٹ نہیں کرائے گئے، اور بہت ساری ایسی دوسری چیزیں ہیں جو مجھے نہیں بتائی گئیں. وہ کیا ہیں؟ یہ لفظ آپ ان کے نکال لیجئے ان کی ویڈیو سے. اگر کوئی بھی شخص اسموکنگ کرتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے یا ڈرگز لیتا ہے، اس کو وہ ڈسکنٹینیو کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک آپ اگلے کلینک پہ جا کے ان کو صحیح طرح بتائیں گے نہیں. کلائنٹ کی ہسٹری اس کے سرجن کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ نشہ کرتے ہیں اور اپنے سرجن کو نہیں بتائیں گے تو پھر آپ تیار رہیے. یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے الکوہل لیتے ہیں وہ نہیں بتاتے آگے. تو ساجد حسن صاحب کا بھی جو سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس طرح کروانا ہی نہیں چاہیے تھا. سیکنڈلی ان کے ٹیسٹ نہیں کیے گئے تھے. تھرڈ، وہ کلینک اتنا اسپیشلائز نہیں تھا جتنا انہوں نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی. ساجد حسن کو ٹریٹ کرنے والے پاکستان کے کمپیٹنٹ پلاسٹک سرجن اور ایکٹر بھی ہیں. انہوں نے ان کو فلیپ اٹھا کے لگایا، جو کہ زیادہ مشکل کام ہے. لیکن وہ کیوں سکسیزفل ہوا؟ کیونکہ انہوں نے سارے پیرامیٹرز ان کے سیٹل کیے ایک پراپر ہاسپٹل کے اندر. انہوں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا، اور سب سے بڑی جو مین اہم چیز ہے وہ اوبیسلی کوالیفائڈ اور کمپیٹنٹ ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی. اچھا نوشین صاحب، لاسٹلی یہ بتائیں کہ بیسٹ ایج کیا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے؟ کوئی ایج لمٹ ہے کہ اس کے بعد جو یہ پروسیس ہے؟ دیکھیں 18 ایئر سے پہلے تو بالکل نہیں ہو سکتا. 18 ایئر سے پہلے بال ایسے یوزلی گرتے بھی نہیں ہیں. اب تو گر رہے ہیں، اب تو 15 سال میں گر رہے ہیں. 15 سال کے لڑکے آ رہے ہیں، ماں باپ لے کے آ رہے ہیں کہ بال گر رہے ہیں. جی، وجہ وائٹامن لیول پورا نہیں ہے، رات کو جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں. جی میں تو 2 بجے سوتا ہوں، دن کے 2 بجے سوتا ہوں، اور پھر میں اگلے دن اٹھتا ہوں. ویری گڈ. اگر آپ یاد کریں ہمارے پیرنٹس کیسے صبح قیامت آ جاتی تھی اگر آپ 1 منٹ ایکسٹرا سو جائیں. وہ میرے خیال سے ماں باپ کا زیادہ قصور ہے، بچوں کا کم قصور ہے، کیونکہ اگر ان کو ماں باپ کا ڈر اچھا ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے. کوئی ہیئر کیئر بتائیں، کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی گھر میں کچھ کر کے ذرا بال شال اچھے بنا لیا. جی کیئر میں آتا ہے سب سے سستا اور سب سے آسان آنین واٹر. جو بھی شخص کوئی ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا، سمپلی پیاز کا پانی لگانا سٹارٹ کر دیں. یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیا ہوا، کوئی اور چیز بتائیں نا. تو کہہ رہے کسی نے آزمایا ہوا ہے، اس میں اسمیل بہت آتی ہے. اسمیل تو ٹھیک ہے لیکن اوبیسلی سستا ہے نا. تو یہ بال چاہیے یا اسمیل چاہیے؟ ایک چیز چوز کر لیں. آپ 2 گھنٹے کے لیے لگا لیں، اس کے بعد واش کر لیں. جتنی بڑی دنیا کی مہنگی پروڈکٹس ہیں ان کے اندر اسی کے ہی نینو انگریڈینٹس وہ ایڈ کرتے ہیں. لیکن ہمیں آرگینکلی چیزیں لگانی نہیں ہوتی. پیاز کا پانی ہے، آپ نے سر پہ بالش کر کے لگانا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ 2 گھنٹے بعد دھو دیجیے. بہت اچھا افیکٹ دیتا ہے. انڈا بھی لگاتے ہیں نا، انڈا دہی. انڈا بیسیکلی ادھر کام کرتا ہے، انڈا یہاں کام کرتا ہے، انڈا یہاں روٹس پہ کام نہیں کرتا. بیسیکلی انڈا پروٹین ہے نا، تو جب پروٹین لگتا ہے تو بالوں کی فرز چلی جاتی ہے، شائن آ جاتی ہے. انڈے کی اسمیل آتی ہے. وہی بات ہے. ابھی جو آپ نے کہا کہ انہوں نے ساری چیزیں ٹرائی کی لگا کے آتی ہے، اس کی آ رہی ہوتی ہے. ہمیں تو یہی پھوڑتی ہوں، میں یہاں آنے سے پہلے پھوڑ کے بیٹھتی ہوں. دیکھا. چلے ڈاکٹر فاروق نوشین، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ آپ کا بلانے کا. اور خواتین و حضرات، یہ ایک بڑا نیشنل جو ہے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. لیکن اس چیز سے ہم نے ایک بات جو سیکھی جو سب سے اہم ہے کہ کوئی بھی پروسیجر کروانے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں ضرور ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. اب گوگل ہر جگہ موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے گوگل لٹرلی. ٹھیک ہے، آپ جو بھی پروسیجر، چاہے وہ آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو یا کوئی ڈرماٹولوجسٹ سے کوئی آپ کروانے جا رہے ہو، کوئی ٹریٹمنٹ XYZ، آپ گوگل کریں، لکھ کے اس کے ڈرا بیکس پڑھیں، اس کے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کتنا ہو سکتا ہے، یہ آیا آپ کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں. پھر پلیز اس کے بعد وہ پروسیجر کروانے کے لیے جائیں اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. بریک کا وقت ہو گیا. جی بالکل خواتین و حضرات، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سب کی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक जी नाज़रीन और हाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और आज का प्रोग्राम तो जैसे डेडिकेट कर दिया है हमने तालीम की जानिब जो है। और ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को पता है वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते बजट पेश किया है जिसमें तालीम के शोबे और आला तालीम के लिए जो है सिर्फ 81.9 अरब रुपये मख़सूस जो है वो किए गए हैं। और सेहत और तालीम वो शोबे हैं जिनके लिए महदूद बजट रखा गया है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की जानिब नज़र दौड़ाएँ, चाहे वो चीन हो या भारत हो या दुनिया का और कोई भी तरक्की याफ्ता जो मुल्क हो, जब तक कोई भी कौम अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं देती है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तरक्की हासिल करने के लिए तालीम वो वाहिद रास्ता है जिसको इस्तेमाल करके कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रखा जा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। अब जानिए ये ज़रूरी है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वैसे वजह तो हम सब लोगों को मालूम ही है। भारत जी, इस पे मज़ीद बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के हैं और बड़े खूबसूरत भी हैं, बड़ा अपना एक स्टाइल है, वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं और मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका और एजुकेशन और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इरफान असगर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी। एंड प्लेयर कि यहाँ पे मैं आया हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और बहुत मज़ा अभी मैं देख रहा था यहाँ बैठ के। और जितना एनर्जी लेवल आप लोगों का था यहाँ पे, जितनी हंसी जितनी खुशी के साथ आप लोग कह रहे थे, मेरा ख्याल यही वो चीज़ है जो मिसिंग है और यही वो चीज़ है जो पहुँचानी है कि एड्डी कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई ऐसा कोई कौमों की ज़िंदगियों में ये बैड फेसेस, ये पैचेस ये आते रहते हैं। घबराना नहीं है वो जो एक बात है, लेकिन ये वाला घबराना नहीं है, ये और वाला ये हटके वाला है थोड़ा सा। सर ये बताएं कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है ये कब बेहतर होगा, कब तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाएगी? सवाल। अच्छा, आप खुद भी हंस रही हैं इस पे, मैं क्या इसके बारे में बताऊं? लेकिन मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके मुंह से सुनूं कि आपकी क्या राय है। वो मैं ऐसे मौक़ों पे कहता हूँ कि एक दिन अचानक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा उसमें, क्योंकि अभी जिस हिसाब आपने बताया कि तालीम और सेहत जो है वो थोड़ा सा मिसिंग लिंक्स हैं और मिसिंग लिंक्स नहीं है एक्चुअली, शायद ये प्लान्ड है क्योंकि तालीम और सेहत दुनिया भर में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इस मुल्क में सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो तालीम और सेहत ही है। तो वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है। उसकी वजह से जो है फिर हम देखते हैं कि बजट जो है वो भी उसमें एलोकेशन कम होती है उसमें। लेकिन ये अभी आई थिंक प्रायोरिटीज सेट होते होते बहुत टाइम लगेगा। अभी आप ब्रेक में मोबाइल अपना देख रही थी तो मैं वो सोच रहा था उसमें कि मोबाइल में हर बच्चे के पास, हर किसी के पास बहुत सारे मोबाइल्स हैं, सब चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारे ऐप्स हैं इसके अंदर, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोबाइल का मेन फंक्शन क्या है? वो कॉल सुनना और कॉल करना है। आपने दुनिया जान की जितनी बड़ी से बड़ी ऐप इसके अंदर खोली हो, बिल्कुल जो प्रायोरिटी है ना फ़ोन की, जब कॉल आएगी ना तो वो सारी के सारी जो ऐप्स हैं ना वो बाद में ख़त्म हो जाएंगी और सबसे पहले आपको कॉल मिलेगी। जब तक तो ये एक हमने इससे कुछ नहीं सीखा कि प्रायोरिटी सेट है। मोबाइल की जितने भी गैजेट्स आ गए इसके अंदर जो कुछ भी आ गया, लेकिन उसकी जिस भी कंपनी का आप मोबाइल ले लें वो प्रायोरिटी सेट है कि कॉल आएगी तो सब कुछ वो ओवर रूल कर जाएगा और कॉल वहाँ पे पहुँचेगी। हम उस पर उसको नहीं सीख पा रहे और ये एक मैं ख्याल सब लोगों के लिए इस किस्म की बात है उसमें कि यार ये थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट कर लें, हाँ तो बड़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। कोई ऐसे प्रायोरिटीज भी सेट करें, गोल्स भी, लाइफ के गोल्स सेट करें जो है ना। हमारे यहाँ वो चीज़ें हैं नहीं, मानी नहीं रखती हैं असल में। हमारे यहाँ जो मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को, यूथ को आप ये सारी बातें क्या बताएं, पहले उनके बड़ों को बताएं कि वो अपनी प्रायोरिटीज जो है वो सेट करें, तब जाके देखें क्यों यूथ का ये हाल क्यों है। क्योंकि जो वो बड़ों से सीखते आ रहे हैं तो उनका तो कोई कसूर नहीं है ना इसके अंदर। अब आप जैसे 4-5 लोग खाली खड़े होकर मोटिवेशन दे रहे हैं, घर में जाके उन्होंने वही बाप माँ देखने, वही सारी चीज़ें देखनी है, तो कहाँ से उन्होंने वो ठीक हो जाना। बड़ी अच्छी, बड़ी मज़े की बात की मोटिवेशनल स्पीकर सारा कुछ जो है वो बहुत से बन गए, हम भी शायद थोड़े से बन गए उसमें। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोगों ने अपनी जगह छोड़ी है। पहले मेरी एज में मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता था, मेरे वालिद साहब होते थे, मेरी वालदा होती थी, मेरे उस्तादज़ा होते थे। अब वो उस्तादज़ा ने और वालदैन ने अपनी जगह छोड़ी है तो फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर उग आए हैं और ये सारा कुछ होता जा रहा है उसमें। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को तो आगे आना है ना चीज़ काम करने। लेकिन नहीं, वो ऐसे तो नहीं आना है जिनके रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए। मोटिवेशन स्पीकर बाप नहीं हो सकता, उस्ताद नहीं हो सकता, उसने थोड़ा सा टाइम आपको ऐसे ही चार्ज करना है। एंड अभी जो हालात चल रहे हैं
मोटिवेशन इज डेंजरस एक्चुअली वो किसी भी चीज पे आपको मोटिवेट करके यूथ को जो है वो राइट आपको उसको क्योंकि हमारी आपने वो देखा होगा एक मोटिवेशन स्पीकर, उनका नाम नहीं लेता मैं, जो कहते थे नौकरी नहीं करनी चाहिए, और जब उन्हें मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने नौकरी पकड़ ली। और क्या हाल चाल है? ठीक ठाक पहुंच गए हम सब। तो एक्यूरेट मोटिवेशन जो है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई नेगेटिवली ना मोटिवेट हो जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो नेगेटिव होने के लिए तो तैयार बैठी है। नहीं, हमारी यूथ में बड़ा पैशन है, बड़ा जज्बा है। अब ये लीडर के ऊपर होता है कि वो लीडरशिप के ऊपर होता है कि वो कैसे उसको इस्तेमाल करवाते हैं ना। ये वाली अभी यहीं खड़े होकर मैं नारा लगा दूं एक चीज का, अब उस नारे में एग्जैक्टली वो वाली चीज जो है इट्स डेंजरस। और जिनका जिक्र हुआ था उनके साथ थोड़े दिन पहले मैं बैठा हुआ था तो यही बात हो रही थी कि जितने आपको नज़र आता है कि कितने ढेर सारे फॉलोअर्स हैं और सारा कुछ वो हैं, कासिम भाई हैं, बाकी सारे बहुत से इस तरह से लोग हैं उसमें, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स जो है जिनके हैं और सारा कुछ चल रहा है। तो मैं उनको एक तार था और शेयर कर रहा था, बताना क्या उसमें कि इसका मतलब है कि यूथ जो है वो किसी खोज में है। वो इसका ये मतलब नहीं कि मोटिवेशन स्पीकर बहुत कामयाब हो गए, नहीं, वो यूथ ढूंढ रही है। पेरेंट्स, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, सब लोग वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता, कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं वो लोग उसमें, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे बहुत फॉलोअर्स हो गए जनाब, बहुत बार। और नहीं यार, वो उनमें एक एक्सटेसी है, उसमें एक अर्ज है, वो एक परेशानी है, वो खोज है उन बच्चों के अंदर उसमें। वो गैप्स फिल करने हैं। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कर पा रहा। वो थोड़े अरसे के लिए आता है, पॉप अप होता है, खत्म हो जाता है, दूसरा पॉप अप होता है। वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स तो नहीं कहना चाहिए, मेरा ख्याल है वो भी एक रिसर्च स्कॉलर्स कह लें, उनको क्या कर ले, उसमें अपनी अपनी फिलॉसफी सबकी उसमें। लेकिन वो यूथ में एक खोज है, एक वो बात की है। हाँ, तो वो उसका शायद मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो थोड़ा सा एज ले लेता है और सुन लेता है। बट पेरेंट्स एंड टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स वही हैं, बाकी सब ड्रामा। अच्छा, पेरेंट्स ने भी अपने बच्चे जो हैं आउटसोर्स कर दिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, कि भाई ये लें, ये हमारा बच्चा है, हमने पैदा कर दिया है, अब इसको आप पालें, अब आप पालें उसमें। तो वो एक बड़ी ऑड सिचुएशन है। तो वही बात होगी ना, फिर टीचर्स ने अपना जो है वो जगह छोड़ दी है, अब वो भी ये कहते हैं कि एकेडमीज में आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। इसी तरह से पेरेंट्स भी हैं, ऑब्वियसली एंगेजमेंट है उसमें। यहाँ पे मैं इस्लामाबाद में भी आया हुआ था, तो एक मैं यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैं कैरियर काउंसलिंग के लिए उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, उनके हेड के साथ। तो वो कहते कैरियर काउंसलिंग बाद की बात है, अभी बच्चों को अपनी काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो अपने रिलेशनशिप्स, अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स, अपने यार दोस्तों के रिलेशनशिप उसी से बाहर निकल रहे। तो कैरियर काउंसलिंग तो बहुत दूर की बात है। और बच्चा जो है वो तालीम से भाग रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, आपने अपने सिलेबस को और अपनी पढ़ाई के अंदाज को इतना करख्त बना दिया है, इतना बोरिंग कर दिया है कि बजाय उसमें दिल लगाने के उसका दिल उचाट हो रहा है। आप यकीन कीजिए, कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने कुछ उर्दू के कुछ चीज़ें पूछी, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, आई हेट उर्दू। मैंने कहा क्यों ऐसे? वो जो टीचर हैं, उन्होंने उर्दू की टीचर के लिए अपने ऐसे, वो ऐसे करती हैं, वो ऐसे करती हैं। मैं गई हूँ फिर वहाँ की प्रिंसिपल के पास और मैंने उनसे कहा आपकी आर्ट्स टीचर के बच्चे फिदा हैं, फैन हैं, क्यों? क्योंकि वो हंसती है, मुस्कुराती है, उसका जो पढ़ाने का अंदाज है वो बहुत अच्छा है। बच्चे वेट करते हैं आर्ट्स की क्लास का, क्यों? क्योंकि पढ़ाने का अंदाज। तो आप उर्दू के टीचर को भी वैसे ही बना दीजिए ना। पढ़ाने का अंदाज भी हमारे यहाँ सही नहीं है, इसका मतलब कि टीचर्स को भी पढ़ाने का अंदाज तब्दील करने की जरूरत है। बहुत कुछ तब्दील करने की जरूरत है। अच्छा, वो कुछ ऐसा भी हो गया कि सिलेबस थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि जो वही मोबाइल पे दोबारा वो जो एक आज सारी ज़िंदगी जो है वो मोबाइल के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है उसमें। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मोबाइल के ऊपर आ रही है वो बहुत ज़्यादा है बनस्बत इसके जो उस किताब में या वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा पता होता है जो टीचर बता रहे होते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा पता होता है। और वो एक्सेस ऑफ नॉलेज इज़ ऑल्सो डेंजरस एंड क्राइम एज वेल उसमें। तो वो भी मसाइल जो है, बल्कि अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में मुझे इन्वाइट किया था गेस्ट लेक्चर, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें कहा बाद में कि हमें अब मना कर दिया गया है, हम लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स क्लास में नहीं लेकर आ सकते। क्यों? यही बात कि जब टीचर हमें कुछ पढ़ा रहा होता है तो हम उससे एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे थे रिसर्च करके कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये ऐसा नहीं है। और इससे लिंक करने में लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो उस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली बैचलर्स या मास्टर्स की,
اور وہ کر کے آپ اسلامیات بھی پڑھا لیں, آپ سائنس بھی پڑھا لیں, آپ کچھ بھی پڑھا لیں, کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں ہیں. نہیں یہ تو کوشچن نہیں, یہ تو آنسر ہے. کویسچن یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا وہ مطلب سارا کچھ ہے, پورا سسٹم ہے اس میں. وہ نیا پاکستان تو نہیں بن سکتا, لیکن وہ جو کچھ بھی ہے اس کو جو ہے وہ شاید مٹا کے دوبارہ بنانا پڑے گا, ریکنسٹرکٹ نہیں ہو سکتا اس میں. بنیادیں جو ہے نا وہ وہاں سے سسٹم ریوائیو کرنا, پراپر ریفارم ہو, اور ہر جگہ پہ سے تو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, گرومنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ اس میں جب آپ کا 60% آپ کا جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہوگا, جو کچھ آج کل بچے دیکھ رہے ہیں, یہ وہ والی قوم ہے جنہوں نے 50 سال میں اسی ملک میں رہنا ہے یا حکمرانی کرنی ہے یا کام کرنا ہے یا سپورٹ کرنا ہے, سارا کچھ اس میں. وہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کل ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, اور وہ اس کا پھر آگے امپیکٹ کس طرح سے جو ہے وہ آئے گا اس میں. یہ ختم تو نہیں ہوگا, یہ وہ بچے ہوں گے جو باہر نہیں جا سکیں گے, وہ یہیں پہ ہوں گے. ویسے عرفان صاحب, ہمارے یہاں جو ابھی بجٹ پیش ہوا ہے سب سے منیمم جو ہے وہ تعلیم اور صحت کے اوپر تھا, ٹھیک ہے. ہم بچپن تو پھر اس کے آگے تو کچھ کہنا بنتا ہی نہیں کہ ہمیں کتنی فکر ہے تعلیم کی یا بچوں کے فیوچر کی. جواب دی جا رہے, سوال میں کر لوں. نہیں, میرا جو سوال ہے اصل میں آ رہی ہوں کہ جب سے ہم چھوٹے ہیں ابھی تک ہم نے سنا یہ فلانی کانفرنس ہو رہی ہے, بجٹ آ رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. کوئی بھی آج تک ایسی میں نے کوئی اجتماعی کانفرنس نہیں سنی کہ جس پہ سب لوگ یکجا ہو کے تعلیم کے مفاد کے لیے یا بچوں کے فیوچر کے حوالے سے پریشان ہوں. کوئی ایسا سسٹم قائم کیا جائے کہ بچہ جو ہے وہ تعلیم کی جانب راغب ہو خوشی خوشی. تو یہ سوچ جب میرے عام سے ایک دماغ میں آ سکتی ہے, تو یہ جو کرتا دھرتا ہے یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بیسیکلی ریفارمز ہی نا, ریفارمز ہی ہیں, وہ پرائرٹی ہے. وہ جو 5 سال ہیں وہ بھی ٹینیور تھوڑا سا کم ہو گیا, 5 سال بھی کوئی پورا نہیں کر پاتا اس میں. تو وہ جو ہے وہ اپنی پتہ نہیں کس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جا سکے گا کہ وہ اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں سارا کچھ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ہیڈز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ لگے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بجٹ کو اسی طرح سے ٹرم کرتے ہیں. آپ کا جو آپ کا جو بجٹ جو آتا ہے یہ اوبیسلی یہ وہ والا آتا ہے جو گورنمنٹ سیکٹر کا بجٹ ہوتا ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر تو پھر اس بجٹ میں نہیں آتا. تو بہت سیورل میتھمیٹکس انوالوڈ اس میں. ایک ہوپلیسنس ہے پوری سوسائٹی کے اندر. الٹیمیٹ سولوشن وہ کہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں. یہاں پہ بیٹھ کے بھی تو کاروبار کیے جا سکتے ہیں نا, آپ کو صرف نیت ایکسٹرا محنت کی ضرورت ہے. نہیں, برین ڈرین بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت بڑا لاس ہے, ایگریڈ بہت بڑا لاس ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں بات ہو رہی تھی کہ یار جو بچے رہ رہے ہیں یہاں پہ ان کو فوکس کرنا ہے, ان کو اپنے آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹیاں باندھنی ہے. ارد گرد کا جو حالات ہیں, جو کچھ اس وقت سچویشن چل رہی ہے, اس سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے اور فوکس کرنا ہے. کیونکہ 2 سال 3 سال 4 سال کتنا ہو یہ ٹرموائل کتنی دیر ٹھہر جائے گا. لیکن اس کے بعد جو برین ڈرین ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ جو بچے یہاں پہ ہیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی اپرچونیٹیز کھلنے والی ہیں. اچھا, ہاں, وہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے برین ڈرین کا, اس میں بہت سی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. یہ تو قوموں کی زندگیوں میں یہ چھوٹا موٹا ٹائم جو ہے یہ اس قسم کا ٹھیک نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن چلو آ گیا, ٹھیک ہو گیا. لیکن جو لوگ یہاں پہ ہیں جو نہیں جا پا رہے, اور ان کو جانا بھی نہیں چاہیے, لیکن ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اگلا دور انہی کا ہے. اب کسی نے, کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا نون نے یا پیپلز پارٹی نے یا خان نے یا کسی نے, یہ حکومت ان لوگوں نے کرنی ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے, اسی یوتھ نے کرنی, ان لوگوں نے کرنی ہے اس میں. تو وہ ٹائم ان کے پاس آنا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا ہے. یہ جو ڈیزاسٹر ہے یہ بہت ساری اپرچونیٹیز یوتھ کے لیے لے کے آ رہا ہے. برین ڈرین ہو گیا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, انوائڈیبل تھا, سچویشن تھی, سارا کچھ ہو گیا اس میں. لیکن اس پہ بہت فوکس کرنا ہے. جو بچے یہاں پہ ہیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی اپرچونیٹیز تھوڑا ہی عرصے میں جو ہے وہ کھلنے والے ہیں. ان کو اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے, نہیں تو پھر کوئی اور قومیں آ جائیں گی, اور لوگ آ جائیں گے, گیپس تو نہیں رہیں, گیپس فل ہو جائیں گے. اور اکوپ بھی جو کرنا ہے اسکل سے کرنا ہے, اسکل کے ساتھ ایجوکیشن اسکل آ جاتی ہے. مطلب آپ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی, خاص طور پہ تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے. تعلیم تو ہر جگہ ڈگری تو مل جاتی ہے اس میں, وہ تو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو
आपको वो दे जा रही हैं, उनको डिग्रियां जो हैं वो हर महीने फैक्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, हाँ वो तो सारा चल ही आ रहा है। लेकिन जो लोग बच जाएंगे यहाँ पे, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको फोकस करना है, जगह बनानी है। एक सवाल जो आपने स्टार्ट में बात की थी कि एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, और आपने कहा कि ये प्लान्ड लगता है आपको, क्योंकि अगर हम एजुकेशन फोकस करें तो शायद हम एज अ नेशन जो है ना एस्टैब्लिश हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो प्लान ये आपको क्या लगता है, बैरूनी ताकतें हैं या कौन सी ऐसी ताकत है जो कि ये बैरूनी ताकतें? तो ये तो आप जो है वो एक मिसिंग लिंक है यार उसमें, कि आप किसी और पे तो बैरूनी ताकत पे डाल दें। खुद ही जवाब दे दिया अपने सवाल हाँ, में। मतलब मैं चलता हूँ सलाह, लेकिन मैं खुद ही जवाब लेकिन हर किसी के मंशूर में जो एजुकेशन पे बहुत फोकस होता है, ऑलमोस्ट स्टार्ट एजुकेशन से और इकोनॉमी और सारा कुछ पे होता है उसमें। तो फिर क्या होता है कि फिर एजुकेशन जो है वो रह जाती है उसमें। क्या एजुकेट नहीं किया जा रहा इसलिए कि यार अगर एजुकेट हो जाएंगे तो अवेयरनेस आ जाएगी, फिर पता चला किसको फिर वो जो एक ज़ात बरादरी और सारा कुछ उसके हिसाब से जो वोट मिलते थे, शायद वो वोट मिलने मुश्किल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वैसे इरफान साहब चले हो गया, खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब उसको सही कैसे किया जा सकता है? सही तो होना ही होना है, ये तो एक कुदरत का कानून है कि एक चीज़ जो है वो एक अपने अंजाम तक पहुंचती है। हम जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, स्टोरी राइटिंग पढ़ रहे थे, सारा कुछ उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें कहा जाता था कि कोई भी कहानी ख़त्म नहीं होती है, वो एक दूसरी कहानी में ढल जाती है। तो ये जो है एक चीज़ जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती है, एक्चुअली वहाँ से एक नई कहानी जो है वो फूटती है उसमें। तो वो ख़त्म नहीं होना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, पर तुसी की सुंदर हो। मेरा कहने का ये तो समझा कि ये ख़त्म नहीं होना है, मतलब ख़त्म नहीं, ये गंद ऐसे ही रहना है, सही नहीं होना। नहीं, ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स होना है। ये 2 साल 3 साल 4 साल बाद जो है ये बेशक वो 100% ठीक ना हो, लेकिन 20 30 40% जो है वापस आएगा। और 20 30 40% जो है वो इस कौम के लिए जो इतनी अभी इस वक्त बिल्कुल बॉटम लाइन पे है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर श्रीलंका जो है उसकी डिफ़ॉल्ट होने के बाद उसकी करेंसी आपसे बेहतर है, इसका मतलब है कि यार उसमें कुछ लोग थे, उसमें ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि यार नहीं कोई बात नहीं, ये डिज़ास्टर है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगेन उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यही मैं यूथ को भी कह रहा हूँ आज की, कि वो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, ये गैप्स फिल होंगे, और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। ये कितना इलेक्शन अभी साल 1.5 साल 2, चलो जितना भी हम स्पेकुलेट कर लें उसमें, चलो 2 साल लगा लो, होने तो कोई सिस्टम तो है होना है, सिस्टम तो नया सिस्टम तो आना ही आना है, कोई भी सिस्टम आना है उसमें। तो स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फोरम्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लेके आए, चीज़ें कह रहे हैं उसमें, तो स्टेबिलिटी एंड ऑफ द डे तो आनी ही आनी है, वो किसी तरह से भी आए। और जैसे स्टेबिलिटी आती है तो उसके बाद जो है वो जो भी ज़रा सी चीज़ें ठीक होती हैं, तो फिर वो गैप्स जो होंगे, जो ब्रेन ड्रेन हो गया हुआ है, वो गैप्स फिल तो होने हैं, वो तो वहाँ पे चीज़ें होनी है। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, उसको उसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करें। बिल्कुल ये वाली बात नहीं करें कि लौट गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गया, और नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, तो अगर ये सोच रखेंगे ऐसे पैसे लेने हैं मोटिवेशन यार, होप जो है वो नहीं खत्म होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, आपको पता है कि सब कहीं ना कहीं डिप्रेस हैं, किसी न किसी वजह से, घरेलू मामलात हैं, तो अपनी कोई रिलेशनशिप की वजह से, तो जॉब की वजह से, किसी ने ब्लॉक कर दिए, इनको ही ब्लॉक किया। यकीन मानिए दिल से निकल के आया ये जो जुमला आया है ना, अब ये आंसू भी आएगा। ये लीजिए प्लीज, ये लीजिए, पूछिए, पता लगाना पड़ेगा दया कि किसने ब्लॉक किया है। तो ये जो हमारी यूथ है, इसको थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे जुमले बोलें, 2-3 जुमले ही सही, कि जिससे वो मोटिवेट हो जाएं, वो थोड़ा सा जोर पकड़ें, थोड़ी एनर्जी पकड़ें। एनर्जी बिल्कुल है, मैं यही तो बार बार अगर मैं फोकस करके यूथ को डायरेक्ट अगर बात करता हूँ उसमें, तो वो यही कहता हूँ कि यार जो पहले मैं बात करता आया हूँ कि यार ये साल 1.5 साल 2 साल कितना कि ये मसला रह जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है ना वो दौर आप लोगों का है। ये मुल्क जो है वो चलाना है एंड ऑफ द डे जो यूथ ने है चलाना। हुक्मरानी की बात नहीं कर रहा मैं, चलाना जो इंडस्ट्रीज़ है, जो एजुकेशन सेक्टर है, जो चीज़ें हैं, जो इकॉनमी चलानी है, वो ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो आप लोगों के हाथ में ही आनी है। आप ही वो लोग हैं जो 60% है इसके, और आप ही वो लोग हैं जो अगले 40-50 साल जो है आप लोगों ने यहीं पर सर्वाइव करना है।
تو یہ ملک آپ کا اپنا ہے. آپ فوکس کریں, ڈیڈیکیٹڈلی کریں, کمٹ کریں اس پہ, اور وعدہ کریں کہ جناب اس ملک کو آگے ساتھ لے کے چلنا ہے. اس میں جانا ہے ضرور چلے جائیں, لیکن چلے بھی جائیں گے تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, مجھے یقین ہے کہ بہت سے ایسے یوتھ یہاں پہ ہے جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتی, چیزیں کر سکتی ہیں. لیکن آج سے فوکس کریں. اگر فوکس نہیں کریں گے, اور وہ جس طرح سے میں نے موبائل کی مثال دی کہ پرائرٹیز اپنی سیٹ نہیں کریں گے, تو تب تک نہیں. اگر وہ نہیں تو گھومتے رہیں گے, پھر وہ اسی طرح کے موبائل کی ایپس میں روز ایک ایپ کھولی, دوسری کھولی, 10 ایپس پوری کھولنی ہے, فوکس کسی پہ نہیں کیا, ٹارگٹ کسی پہ نہیں کیا. ٹارگٹ کریں کہ یار یہ ملک جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو ٹھیک کر کے چلنا ہے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں آ گئی, کوئی کچھ ایسا نہیں ہو گیا, کوئی قیامت نہیں آئی. نا امیدی تو ویسے ہی گناہ ہے. ہاں بالکل بالکل, وہ تو اس میں وہ تو ریلیجسلی بھی ہم لوگ اس کو دیکھ لیں تو نا امیدی تو نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر, آپ جو ہے نا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, بڑا ایک جرنی ہے آپ کی میڈیا میں. تھوڑا سا اپنی سیلف تعریف جو کرنی چاہتے ہیں. میں بالکل نہیں کرنا چاہتا. سفر کا آغاز کی طرف سے کیا تھا یہ تھوڑا سا یار. سفر کا آغاز جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن ہوا یہ تھا کہ اس میں فوج میں جانا چاہتا تھا. آج کل کے حالات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, سچ میں کہہ رہا. اور میں جو ہے وہ انٹرویو میں اور میں انٹرویو میں ہر باری باقی ٹیسٹ کلیئر کر دے, انٹرویو میں فیل ہو جاتا تھا. تو انٹرویو میں جو ہے وہ پاس ہونے کے لیے, کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں اچھا بول نہیں پاتا ہوں, جس میں دوسری چیز سے جملے پہ میں ناک آؤٹ ہو جاتا تھا اس میں. تو وہاں سے میں نے کہا کہ نہیں, مجھے تھیٹر کرنا چاہیے, مجھے یہ بولنے کا اسپیکنگ ایبلٹیز جو ہیں اس کو امپروو کرنا چاہیے. اس کو امپروو کرنے کے چکر میں نے تھیٹر کیا, پھر واپس نہیں آیا. پھر تھیٹر, پھر ٹی وی, پھر سارا کچھ ہوسٹنگ, تو وہ وہاں سے کرتے تو یہ کہ وہ ایسا ایک جرنی شروع ہوا. اس کے بعد ماشاءاللہ بڑی زبردست جرنی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ سوسائٹی میں نا ہوپلیسنس نہیں ہونی چاہیے. تو پیرنٹس کو بھی کوئی ایڈوائس دیں, کیونکہ پیرنٹس کو بھی ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا بڑا جو ہے تلقین کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی پیرنٹنگ سیکھنی ضروری ہے. پیرنٹس کو بھی ایڈوائس کریں, جب آپ نے بچوں کو تو کر دیا, لیکن پیرنٹس کو بھی سمجھانا ضروری ہے. پیرنٹس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے, وہ اس ایج میں آ چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کو جو ہے نا سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, ہو گیا ہوتا ہے. پر وہی بات, وہی پرائرٹیز ان کی اتنی اسٹرانگلی سیٹ ہو گئی ہوتی ہیں. اور اصل جو کہانی ہے نا, جو ساری ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ ایک طرف ہوتا ہے. اور اصل نوکری آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی, آپ کے پیرنٹس, آپ کے بیوی اور آپ کے بچے جو ہیں, اصل نوکری وہ والی ہوتی ہے. اس نوکری کو سٹیبل کرنے کے لیے, اس نوکری کو اچھا کرنے کے لیے آپ پھر باہر, جس کو ہم نوکری کہتے ہیں, ایکچولی وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں اس میں. تو وہ فوکس یہ کرنا ہے اس میں کہ وہ آپ کی فیملی لائف جو ہے نا وہ اتنی ڈیمیج نہ ہو کہ آپ باقی ریٹ ریس میں اتنے بڑے آگے نکل جائیں کہ آپ کے بیوی, آپ کے بچے, آپ کے سب لوگ جو ہیں وہ اسپوائل ہو جائیں یا نگلیکٹڈ ہو جائیں اس میں. تو اگین پرائرٹیز سیٹ کریں گے کہ یار اصل نوکری آپ کے بیوی بچے, آپ کے والدین ہیں, وہ آپ کی اصل نوکری یہ والی نہیں ہے اس میں. یس, اس نوکری کو سیٹل کرنے کے لیے, بہترین پرفارم کرنے کے لیے آپ یہ بھاگ دوڑ, یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ چیزیں سٹیبل ہو جائیں. تو پرائرٹی اگر آپ کے بیوی بچے ہوں گے, پیرنٹس کے لیے میں کہوں گا اس میں, تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے اس کے ساتھ سیٹل ہو جائے گا. لیکن آپ کا پرائرٹی اگر آپ کا پیسہ کمانا اور سارا کچھ ہو جائے گا, تو پھر بیوی بچے اور نسلیں جو ہیں پھر تباہ ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا اور ہمیں بھی موٹیویٹ کیا اور باقی عوام کو بھی جگایا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور خواتین و حضرات, بات وہی ہے جو عرفان صاحب نے کہی ہے کہ آپ نے پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے اور اپنی پرائیورٹیز کے اندر اپنی فیملی کو سب سے پہلے رکھیں, اپنی فیملی کو سب سے پہلے رکھیں, جس پہ ہم نے ابھی ہماری جو پرائیورٹی لسٹ میں فیملی سب سے لاسٹ چلی گئی ہے. اپنی بہن بھائی, ماں باپ, اپنے جو رشتے ہیں ان کو جو ہے نا پرائیورٹائز کریں, کیونکہ یہ جتنی بھی محنت, جیسے انہوں نے کہا بالکل ایکوریٹلی کہا, کہ ہم انہی کے لیے تو کر رہے ہیں, اپنے دوست یاروں کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں. تو جو دوست یاروں کو عزت دیتے ہیں اس کا 10% بھی اگر ہم اپنی فیملی کو دینا سٹارٹ کر دیں, ہماری زندگی ویسی بہت خوبصورت ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب جو ہے وہ وقت پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم کل پھر حاضر ہوں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئی سوچ کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ اور نئی انرجی کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے منیب کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.